Yes, there are two sessions that I will be taking before. One is before lunch and after lunch. So after the initial introduction, what is the research is, what are the research approaches, what is the philosophy. Since I am actually a student of statistics as well as research methodology method side. So I will be starting with the method side. So we will be doing two things today. First, I am introducing the whole process of the research methodology, right? After that, I will be taking the literature review part. In the literature review part, I will be sharing the Excel format that normally researchers use in order to collate their research work, right? And don't worry about the slides as well as that research format. I have already shared that with my students who are doing PhD. So it will be shared with all of you, right? So again, that is just a suggestive one. You can develop your own, but what things are covered that we will be taken up. So here we will be doing with the research methodology part. So as we discuss these two topics here, the first word is research. So here we have a bifurcation. One is other is search, right? The standard definition. So what do we mean by research? Means there is something and we want to go deep dive into that so that we have some more idea about that, right? Means it is not a search. Search can be any random search, right? So as it has been mentioned in the previous session also, whenever we research, there is always something that we develop on that, right? It should not be any random phenomena or it should not be any random thing. That is being termed as innovations. So we are not talking about the innovations. Innovations may be there, discovery may be there while research, but we are developing on research. The second word is methodology, right? So obviously, if I ask what do we mean by methodology, you will be answering uh, of something. But what feeling it gives when we use the word methodology? What feeling we give? Yes, it should be systematic. It should be an orderly process. Is it okay? So I am basically introducing this orderly process um, in a broad manner, and they will be covered in different sessions in a detailed manner. Is it okay? Right. So, as someone has mentioned, that it is a systematic inquiry. So, it has been mentioned as this is a systematic inquiry. Systematic inquiry means this is a orderly process. There is some order. The second word is objective. What do we mean by objective? Unbiased. The good word is, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक सेशन अभी just we have did, it is a scientific inquiry, right? Scientific inquiry doesn't mean that it belongs to the domain of science only, right? Means it should be true for a large section of the stakeholders, right? Stakeholders can be anyone. So this is systematic and objective investigation, right? The word uses investigation. Investigation means going deep down in a subject or problem, so to discover relevant information or principles, right? Here we are using two words. One is relevant information, other is principle, right? Means there is something that is related to broadening the subject domain. Is it okay? Right. So the purpose of introducing the definition is that we should have a clear idea why we are going to research something, right? So it provides us information, right? Information means suppose हम लोग इस रूम में एंटर कर रहे हैं and there is pitch darkness. What are the chances that you will be colliding with number of chairs? Isn't it? Suppose you have a candle, right? So इसकी probability क्या हो जाएगी लड़ने की?
it will be reduced. So what candle or what light provides us? It provides us information about this. Isn't it? So once we have the information, then the chances of committing error reduces a lot, right? किस तरह से reduce होती है? Because it reduces the uncertainty. So the objective of the research is to provide information so the uncertainty decreases. So as here we have used two words, one is the relevant information, other is the principle. So accordingly, ये आप लोगों ने पहले भी सुना था, there are two type of researches. One is fundamental research. What is the objective of the fundamental research? To broaden the domain of your subject, right? Means you are contributing something so that your subject grows up, right? The second one is we are not contributing to the broadening of the domain. We are just using the information and that can be used for some decision-making purpose. So that is known as applied research, right? The demarcation between the fundamental research and the applied research is not very clear. It is actually fuzzy in nature. Many a times we move from fundamental research to applied research, and many a times we move from applied research to the fundamental research, right? But these two are the domains. And there are two approaches, both equally used. One is the qualitative approach, other is the quantitative approach, right? There is no point of discussion means which approach is good or which approach is not. But all the researchers have both type of approaches. One, which is originated from some opinion or something qualitative in nature. The other, where we use numbers or we use data, right? So data can be qualitative, data can be quantitative also. So these two are the broad approaches that we use in any research. Okay. We will be focusing on the important. Yes, it will be shared. Right. So we will be focused on more important topics. So I'm just going through the basic steps, right? But one more thing, since all of us are in academics, right? It is just the difference that I am on this side of the table. So you can always stop me and ask questions. Is it okay? Right. It will be there. Okay, right. So, right. So as it has been mentioned that research methodology is a systematic and scientific way for the research problems. Is it okay? Right. So we will be discussing that part. So as it has been mentioned that it provides us information. So what the information gives us? It is used for three purposes. They are actually the three pillars of any research. The first one is to identify the problem, right? Whenever the problem is there, problem is can never be the crystal clear problem, right? Problem is normally very broad in nature. So we have to exactly define what is to be done. So that is known as identifying the problem, right? The second thing is after identification, we go with how it is being done. That is known as structuring of the problem. Let us take an example. Suppose you want to go, you want to construct a house. Is it okay? So the house, the construction of house is obviously is not crystal clear. It may have connotations, different connotations for different person. हमारे लिए हाउस एक फ्लैट हो सकता है, किसी के लिए हाउस क्या हो सकता है, एक स्टैंड अलोन हाउस हो सकता है, किसी का सकता है, किसी का फ्लैट राइट ड्यूप्लेक्स हो सकता है. तो द फर्स्ट वन इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. तो अगर हम हाउस कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट दैट हाउस इज फॉर अस. इज इट ओके? On the basis of that identification, on the basis of that definition जो हम अपनी हाउस की ले रहे हैं, we structure, हम लोग क्या करते हैं, we develop a blueprint कि हम उस हाउस को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट? तो उसके लिए हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं. दिस ब्लूप्रिंट इज नोन एज स्ट्रक्चरिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, राइट? आफ्टर दैट हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं. तो दिस इज द
it happens in the research also. First, we identify the problem, then we define how it is being done, and finally we go with the research. Is it okay? Any idea the amount of time a researcher should devote in these three pillars? Ssuppose हम 100% की बात करें, 100 की बात करें, तो 100 में कितना टाइम आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है या करना चाहिए, कितना स्ट्रक्चरिंग में होता है और कितना सॉल्विंग में होता है? एनी आइडिया? यस, means we have, suppose we have 100 days. Fine. So 100 days में how many days should be devoted to identification, how many to structuring, how many to solving? बताइए. Anyone? कुछ तो बोलो भाई. 30, 30, 40 and okay, and normally the identification is lies it in between 70 to 80%, right? Whether it is a research or any analytics project is there. Normally 70 to 80% time should be given to identification of the purpose, right? Then the remaining time, suppose you are going with the 70, then 20% in the structuring, and the last 10% is in the solving. And if we go with the 80 rule, then obviously it is 15 and 5. Is it okay? Right? Means the major part of any research, major part of any analytical study, in major part of any marketing research should be devoted to identification of the problem. Yes, it is more in the identification, but not only more. Someone has 50. Actually, 70 to 80% of the time should be given to. And again, this is a recursive process. Recursive process means once we go from one stage to another, then many a time we have to come back to the original stage. Okay. So, right. So since systematic inquiry is there, so what we have to do, we have to carefully plan the orderly investigation process. Otherwise, there will always be a garbage in and garbage out. So in the research process that I am teaching here is basically related to that orderly investigation process. There should be an order. And determinant of any research process, the first one is the nature of the problem. As the nature of the problem changes, obviously our planning or our process may be affected. The next one is the researcher. Researcher means the person who is doing the research. All of us have some expertise on certain area. So our expertise also has some impact on our research process. Next is the respondent, from where we are getting the information, from where we are getting the data. And the last one is the owner of the problem, for whom you are doing the research. अगर आप thesis कर रहे हैं तो आप process कैसा follow करेंगे? As per the university norm, right? If you are doing research from some other institution, आप कैसे follow करेंगे? As per that institution. अगर आप किसी कंपनी के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो obviously your process would be as per that company. Isn't it? So all these four are the major determinants of any research process who have implication. Now, since I have mentioned that this is an orderly investigation process, so there should be some stages, there should be some steps. So we start with the identification of the problem. So this identification is being covered in the first point that is known as defining the problem. So this is actually the identification. Is it okay? Once we identify, then we plan कि हमको कैसे करना है, right? So that is known as structuring of the problem. So for the structuring, we have these steps. So these steps actually come under structuring, right?
And finally, what we do, that is known as solving the research problem. Is it okay? Right? So obviously the time devoted is not related to the number of steps that we have put in different stages. But broadly, obviously there is lot of overlapping is there. Sometimes by defining the problem, we plan the research design, and sometimes during the planning of the research design, we go back to defining the problem. So there is a thorough movement in the different stages. Okay? Is it okay? So now we will be discussing the first step. That is the defining of the problem. Now, this defining of the problem can actually be represented by a funnel shape. So what is the role of a funnel? We input many things, right? And only the relevant part is being, it goes out of the second outlet, right? So it happens in this stage also. So whenever we start the research, there is a plethora of information, lot of topics is there. So we have to find out, as per the first lecture that is much based upon this system, philosophy and the conceptual part is covered. I will be discussing the applied part, or I will be discussing the methodological part. So the objective is how we will be identifying, means we are actually giving the precise definition of the problem. So that is known as identification or formulation of the problem. So what does identification of the formulation of the problem is? Converting and translating the research problem into the research objectives, right? We start with the problem, then we define different objectives as well as the hypothesis as per the different things. So we convert the research problem into the research objective, right? So in this stage, means whatever we define as a research objective will be there for all future steps. Okay. So now I am taking an example. I have taken this example in a number of workshops, that whether our research should be based upon the symptoms or our research should be based upon the real issue. I am taking an example. The example is something like that. Suppose we are suppose I am living in a housing society, right? In the housing society, 20 years back, there was a swimming pool was constructed 20 years back. So when swimming pool was constructed in that housing society, it was subscribed by a large number of people. बहुत सारे लोग उसके members थे, and they are getting much revenue from that swimming pool, right? लोग आते थे, उसको use करते थे. Now at present, after 20 years back, the subscription goes to zero, because subscription क्या हो गया? Negligible हो गया, near about zero हो गया. And in the meantime, in the neighborhood of that society where I am living, there is a new swimming complex where some modern facilities are there, right? They are providing the modern facilities and the modern gadgets also for swimming and the recreation. Is it okay? So this is the problem. So what are the symptoms in this problem? Yes, anyone? What are the symptoms in this problem? Number one, right? Suppose you belong to the swimming pool, that 20 years old swimming pool, right? आप उसके एक मेंबर हैं, आप उसके डिसीजन मेकर हैं, and there is a problem. Is it okay? तो आपको करना क्या है कि उसका सब्सक्रिप्शन बढ़ाना है. This is the problem. इसमें आपको रिसर्च करके you have to give some suggestions. Is it okay? Right? So you are the owner of the problem, right? Suppose you are the owner. तो आपको क्या symptoms दिख रहे हैं? Number one, your swimming pool got old, right? So उसकी जो facilities थी वो भी क्या हो चुकी है? They are also old, isn't it? और क्या symptoms दिखाई दे रहे हैं? कि there is an intense competition in the form of a new swimming pool that is providing us some modern facilities, और सब कुछ वहां पे अच्छा. So these are the symptoms. ये आपको symptoms दिख रहे हैं, right?
suppose you want to formulate your problem on the basis of these symptoms, right? क्या solution suggest करेगा बताइए? जो ओल्ड स्विमिंग पूल है उसके मैनेजमेंट को क्या सोल्यूशन सजेस्ट करें? मॉडर्नाइजेशन के लिए करेंगे, आप कहेंगे आप इन्वेस्ट करो उसमें, सब चीज अच्छी करो, राइट? न्यू न्यू फैसिलिटी लाओ, ऑब्वियसली लॉट ऑफ मनी वुड बी देयर, isn't it? But actually, what is the real issue? When the swimming pool was constructed 20 years back, then at that time, in that society, there were a number of young people and number of kids were there, right? They are in huge number. Actually, they are dominating the population that is living there. And the young people as well as the kids use the swimming pool thoroughly. But with the passage of time, after 20 years, the young people becomes old, right? So they are not going to the swimming pool. And all the kids that were there, they have they went out for some education purpose, higher education purpose, or for some job purpose, isn't it? So even if you modernize your swimming pool, will it be subscribed? There are not much chances, because the population for which you are putting the things is not there. So even if you make your swimming pool better, there are not much chances that the subscription will increase, isn't it? So there was symptoms जो हमने discuss करे. And what is the real issue? The real issue was that there is a demographic transition. Right? इसको हम लोग demographic transition ही तो बोलेंगे, कि जो लोग थे old हो गए हैं या वो वहां से move कर गए. So now even if the swimming pool is very good, it may not be subscribed by the resident living there, right? So there is always a debate between whether the problem is being formulated on symptoms or the problems is being formulated on the real issue, right? So आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे प्रॉब्लम सिम्टम्स से बेस्ड है या रियल इश्यू? व्हाट शुड बी द अप्रोच? थोड़ा सा पुराने सेशन पे जाए और सोचिए. Means you have to better inform about that, right? Better informed means you have to put more time in the formulation of the problem, where the different information, primary, secondary, whatever information is to be collected. Otherwise, it might be possible that our problem may be based upon the symptom. It may not provide the solution, and it will go wrong as we move forward, right? So the same thing happens in the आइसबर्ग प्रिंसिपल ऑल्सो. ठीक, टाइटेनिक सबने देखा था. टाइटेनिक का जो क्रैश हुआ था उसका रीजन क्या था? मतलब क्या चीज गलत हो गई थी? मतलब उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया कि जो आइसबर्ग है वो इतना ही बड़ा आइसबर्ग है, जबकि एक्चुअल आइसबर्ग क्या था, राइट? तो माना यह जाता है 85% ऑफ द आइसबर्ग इज बिलो द वाटर and only 15% is above the water. तो डिफरेंस क्या होता है above the water and below the water? रिसर्च के हिसाब से सोचिए, what is the difference between above the water and the below? जो प्रॉब्लम आपको apparently दिख रही है, that may not be the real problem, right? So obviously you have to devote much more time so to identify that what is inherent in that. So normally in all the problems, whatever the domain is, there is the actual problem that is inherent that has to be found out. Is it okay? So that is known as iceberg test, right? अब इसको हम लोग करते कैसे? As a researcher हम लोग क्या करते हैं? आपको जैसे कहा गया कि you have to prepare a synopsis, right? ठीक है? आप क्या क्या अप्रोच करते हो? कैसे? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले यू गो विथ द लिटरेचर. इसका मतलब आपने क्या करा? यू गो फॉर सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, isn't it? You go for the secondary information. Fine. और क्या करते हैं? नहीं, वो रिसर्च क्या बाद में आ रहा. अभी हम लोग आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं. ऑब्जर्वेशन कहां से? Data from other institutes.
Why you go to other institution? No, I am not talking about the survey. We have to define the problem. So why we go to other institutions? Actually, you go to other institution thinking that they have some expertise on that, isn't it? करेंगे कि नहीं? Right? Suppose you want to do research on some medical thing, health research करना चाह रहे हैं, आप कहाँ पर जाएंगे? मेडिकल कॉलेज जाएंगे, राइट? डॉक्टर्स के पास जाएंगे, क्या सोच करके जाएंगे कि दे आर बेटर इन्फॉर्म इन दिस एरिया, इजंट इट? तो दिस इज नोन एज एक्सपीरियंस सर्वे. इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज एक्सपीरियंस सर्वे. मीन्स यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड द नॉलेजेबल पर्सन. ओके, सपोज हम इकोनॉमिक्स की बात करें, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की बात करें, राइट? सपोज हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है, राइट? तो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में is there some gender discrimination for looking for the job, right? तो इसके लिए आपको कहां से एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल लोग मिलेंगे? ग्राउंड से मिलेंगे. आप क्या करेंगे? यू विल गो टू द पीपुल हु आर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक? और उनसे आप ये करेंगे, बात करके ये कर सकते हैं कि हाउ द प्रॉब्लम्स इज देयर, राइट? What are the motivation because of which they are working, and what are the demotivation factor because of which they are not working. So आप उनके पास क्यों जाते हैं? Because you think that they are more experienced. Is it okay? So these two are the main steps, and apart from that there is one more that is known as qualitative study. ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. So these are the three broad steps that we use in order to define the problem. Is it okay? जब हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, तो हमारा जो स्टेज होता है वो एक्सप्लोरेशन का होता है या कंक्लूजन का? एक्सप्लोरेशन का. तो दिस पार्ट इज नोन एज exploratory research. Is it okay? This is known as exploratory research. So we perform a detailed exploratory research in order to define the problem. Is it okay? Right. After that, we make a formal statement. This formal statement, जैसे आप लोग बनाते हैं, it may be in the research question statement form or as in the form of research hypothesis. Right? We put certain questions जिसके बेसिस पे हम लोग वर्क करते हैं. And in the same way, we hypothesize something. ठीक? तो ये जो रिसर्च क्वेश्चन स्टेटमेंट है और रिसर्च हाइपोथेसिस है, ये रैंडम होती है या इसके पीछे कुछ बेस होता है? बेस होता है. बेस कहां से मिलता है? लिटरेचर रिव्यू से एंड रिसर्च गैप से, isn't it? Right? So on the basis of which we make the hypothesis, right? और एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा, इवन हम लोग अपने स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट से पूछते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग आंसर दिखाई देते हैं. Normally, whenever we ask what is the hypothesis, so the most common word that is being used as assumption, right? तो क्या hypothesis एक assumption होता है? यहाँ पे कितने लोग केमिस्ट्री के हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री पढ़ा है? अब कोई नहीं उठाएगा. अच्छा, अब ये बताइए, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस तो सुनी थी ना कि 6.02 into 10 to the power 23 आइटम्स होते हैं, राइट? तो वो एक एजम्पशन था या उसके पीछे कुछ बेसिस था? देयर इज बेसिस. So obviously any research hypothesis is not an assumption, it is always having a strong basis. Means whenever you put some hypothesis either in the thesis or in the research paper, आपको क्या करना चाहिए? You have to justify why that hypothesis or that research question is being taken, right? अगर आप नहीं करेंगे तो even there will be a question mark. हमको ऐसा लगा कि हमको ये करना चाहिए. This is not a work of a researcher. ना आपका पेपर पब्लिश होगा और ना ही आपकी थीसिस अगर प्रॉपरली चेक की जाएगी तो that will be acceptable. So whatever hypothesis that you put, there should be a solid backing for that hypothesis as well as the research question statement.
Again, research question statement and research hypothesis can be used interchangeably. किस तरह से आप फॉर्मल स्टेटमेंट मेंशन करते हैं, दैट इज नोन एज रिसर्च क्वेश्चन. क्वेश्चन के फॉर्म में रख रहे हैं और वी आर पुटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ए रिसर्च हाइपोथेसिस. इज इट ओके? राइट. सो ऑब्जर्वेशन इज एक्चुअली द सेकेंड. ऑब्जर्वेशन आप क्या करते हैं? ऑलरेडी देयर इज, दैट इज द सेकेंडरी इंफॉर्मेशन. Right, so we have put the secondary information. It can be in the form of a written thing. It can be in the form of observation also. Even there is number of qualitative tools also that we will be discussing that will be used as an observation. Is it okay? तो ये हम लोग अभी इसको फिर से when we are covering the research design part, then we will be going back to this. Okay. So the next step is the research design. So research design is actually the blueprint of research plan of action. Okay. I am taking an example. Just a moment. Okay. Now I am taking an example. Very simple example is there. It is from marketing. क्योंकि सभी लोग थोड़ा बहुत उससे familiar होंगे. हम लोग इसमें discuss करेंगे what approach should we adopt. The first problem is we don't know why our sales are decreasing. Right? We don't know why our sales is decreasing. इसी से related एक question और है. Second, don't know whether customer will adopt our product or services. Right? ये हमने कुछ क्वेश्चन रखे. The second is, what is the market characteristics of toothpaste market in Lucknow? Right? This is question number 3. Question number 4 is, what is the level of adoption of NEP in government educational institutions? Is it okay? Next question is whether colored advertisement or social media advertisement is good for our product. Okay. And last question is, online education is good for PG classes, not for UG classes. Okay, I have taken 6 examples, but I have divided them into 3 categories. What is the nature of the first category? Remember, what is research? हम लोग research क्यों करते हैं? For the information purpose. So information is an important thing for any research.
So kindly think these three category vis-a-vis the information. First stage. What is the level of information? नहीं नहीं, कोई टेक्निकल वर्ड ना बोले, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन हाई है या लो है? फर्स्ट कैटेगरी। ओके, किसी ने कहा कि इंफॉर्मेशन लेवल इज लो। ये आपने कैसे पहचाना? क्योंकि देयर इज अ ब्रॉड क्वेश्चन, मालूम नहीं, कुछ भी नहीं मालूम है कि हमारी सेल्स क्यों डिक्रीज हो रही। सेकंड क्या है कि कौन कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लेगा, ये भी नहीं मालूम। व्हाट इज द सेकंड स्टेज? टूथपेस्ट मार्केट इज ऑलरेडी देयर। मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि किस तरह के लोग कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं, राइट? ठीक है, किड्स कौन सा यूज करते हैं, एडल्ट कौन सा यूज करते हैं, राइट? किन किन कैटेगरी के टूथपेस्ट आर अवेलेबल इन लखनऊ, राइट? ठीक, कुछ फोम बेस्ड होते हैं, कुछ क्या होते हैं, आयुर्वेदिक बेस्ड होते हैं, कुछ मेडिसिनल बेस्ड होते हैं, राइट? कुछ इस तरह के क्लोजअप बेस्ड भी होते हैं जो दूसरे उस पर चलते हैं। तो दीज आर द मार्केट कैरेक्टरिस्टिक। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेवल ऑफ एडॉप्शन? मीन्स ऑलरेडी एनएपी इज देयर, राइट? हम ये जानना चाह रहे हैं कि लेवल ऑफ एडॉप्शन कितना है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो हियर लेवल ऑफ नॉलेज इज लो, हाई और मीडियम, right? So here information level is medium, isn't it? Right. अब आप इसको पढ़िए। गुड फॉर आवर प्रोडक्ट का मतलब यह है कि वो प्रोडक्ट के लिए क्या सोचना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट की सेल्स। अगर इसको पहली कैटेगरी से कंपेयर करें और इस कैटेगरी में आए, इसका मतलब दे आर वेरी श्योर कि उनके प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। either color advertisement or social media. They have to identify which one is the, इसका मतलब वो किस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि उनको मालूम चल चुका है कि these two are the best method and they want to adopt only one. Is it okay? नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन सब लोग ले रहे हैं। हमको क्या करना है? हमको ये एग्जामिन करना है कि जो लर्निंग पार्ट है वो हायर एजुकेशन में ज्यादा हो रहा है या नॉट सो हायर एजुकेशन में। इसका मतलब लेवल ऑफ नॉलेज क्या है? इज वेरी हाई, इजंट इट? आपको अगर इस पे बनाना है पहली स्टेज पे, तो आप कैसे करोगे इसको? प्रॉब्लम डिफाइन है कि नहीं है? नॉट मच डिफाइन। इसका मतलब यहाँ पे किस तरह की सिचुएशन है? अनसर्टेनिटी है कि नहीं? तो आपको सबसे पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपके सामने कुछ नहीं, अंधेरा है इस टाइम, राइट? तो आप इस अनसर्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे? यू विल गो फॉर एक्सप्लोरेशन, इजंट इट? ठीक, यहां पर आपको एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। यहाँ पे अनसर्टेनिटी है या थोड़ी सी सर्टेनिटी है, राइट? और इस लेवल पे क्या है? देयर इज सर्टेनिटी। ये क्या है? दिस इज द इन मिडिल बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड सर्टेनिटी। तो आपको अगर ये स्टडी करनी है, कैसे स्टडी करें? बहुत कॉमन सा है, मतलब चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का हो, कहीं का भी हो, कैसे करेंगे? बोलिए। आपको अगर मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करनी है, कैसे मालूम करेंगे? सर्वे करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? ग्रोसरी शॉप्स में जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे, इजंट इट? दैट इज नोन एज सर्वे। ठीक, हमको ये देखना है व्हाट इज द लेवल ऑफ एडॉप्शन ऑफ एनएपी। क्या करेंगे? यू विल मूव टू द डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और वहां जाकर के बच्चों से पूछेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर से पूछेंगे। यू विल बी डूइंग द सर्वे, इजंट इट? इसके थ्रू आप क्या करना चाहते हैं कि आप टूथपेस्ट के मार्केट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, इजंट इट? ठीक, आप लेवल ऑफ एडॉप्शन को चाह रहे हैं, समराइज करना चाह रहे हैं या डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। तो दिस स्टेज इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव। हम सिचुएशन को क्या कर रहे हैं? वी आर डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन। ओके, इजंट इट क्लियर? इसको कैसे करें?
इसको कैसे करेंगे? सोचिए, ये ना कहिए कि सर्वे करेंगे। अगर मान लीजिए कोई हमसे आकर के पूछे कि ऑनलाइन एजुकेशन पीजी के स्टूडेंट्स के लिए बेटर होगी या यूजी के स्टूडेंट के लिए बेटर होगी, क्या हम एक ऑब्जेक्टिव आंसर दे पाएंगे? हम अपने परसेप्शन से आंसर देंगे? कैसे करेंगे? जोर से। बिल्कुल सिंपल आंसर। मान लीजिए आपको ये देखना है, चलिए हम लोगों ने ये दो ग्रुप बना लिए, राइट? दीज टू ग्रुप्स आर वेरी सिमिलर। हमने इनको कलर एडवर्टीजमेंट दिखाया, राइट? और इनको हमने सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट दिखाया। सपोज इसमें वो लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, इसमें वो लोग हैं जो हम टीवी पे या वहां पे देखते हैं, ठीक? फिर हमने दोनों से पूछा कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये प्रोडक्ट आप परचेज करोगे कि नहीं करोगे, राइट? इज इट ओके? सपोज दोनों ग्रुप्स एक जैसे हैं। इसमें 80% लोगों ने रिप्लाई करा कि दे विल बी बाइंग द प्रोडक्ट। इसमें 40% ने कहा कि दे विल बी बाइंग द प्रोडक्ट, राइट? दोनों ग्रुप्स एक जैसे हैं। तो हम क्या कंक्लूजन निकालें? कि वी शुड गो विद द कलर एडवर्टीज, इजंट इट? ठीक। इसमें हमने करा क्या है? वी हैव मेड द टू ग्रुप्स एंड दोनों ग्रुप्स काफी हद तक एक जैसे। काफी हद तक एक जैसे का मतलब है वी हैव मेड अ नंबर ऑफ थिंग्स एज कांस्टेंट। ठीक, हमने बहुत सारी चीजों को क्या कर लिया? कांस्टेंट कर लिया। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, राइट, टेस्ट, सबको कर लिया। ठीक, इसको हमने सेम कर लिया। और एडवर्टीजमेंट को हमने क्या करा? मैनिपुलेट करा है। मैनिपुलेट क्या किया है? इनको हमने दिखाया है कलर एडवर्टीजमेंट और इनको क्या दिखाया? सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट। ठीक। जब आप लोगों ने बचपन में एक्सपेरिमेंट करा होगा, 6 7 में सभी ने साइंस पढ़ी होगी, राइट? एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाते हैं? स्नेल्स लॉ का एडवर्टीजमेंट, आप स्नेल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट आपको याद है? आपकी मैम क्या कहती थी कि एक मिरर रखो, राइट, उसमें एक लाइन खींचो, ठीक, उसमें दो पिंस लगाओ और उस पिंस के इमेज लगाओ, उसमें फिर से लाइन खींचो। हम लोग क्या इस्टेब्लिश करते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपसे और क्या क्या कहा जाता था कि इस अब पिन को कहीं और रख लो, राइट? इसका मतलब कुछ चीजें मैनिपुलेट करी गई है और बाकी सब चीजें क्या रखी जाती? कांस्टेंट रखी। दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। वो एक्सपेरिमेंट कैन बी इन द रियल साइंसेस, राइट, प्योर साइंसेस, दैट कैन बी इन द सोशल साइंसेस, दैट कैन बी इन द मैनेजमेंट साइंसेस। बट एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? वी स्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कैसे स्टैब्लिश करते हैं? वी डेलिबरेटली फिक्स सर्टेन थिंग्स एंड चेंजेस सर्टेन थिंग्स। तो दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। एजम्पशंस तो कुछ होता ही नहीं है रिसर्च में, राइट? हाइपोथेसिस इज बिफोर दैट, राइट? सो अगर हम लोग इसकी बात करें, ये जो इसको हम वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है? ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो भी चीज हम लोग निकालेंगे वो कंक्लूजन्स होंगे या सजेशंस होंगे? पहला पार्ट बताइए। दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ सजेशंस होंगे। उन सजेशन से वी डेवलप द हाइपोथेसिस, राइट? और इसमें जो चीज हम लोग निकालेंगे वो क्या? दे आर कंक्लूजन। तो दैट फॉर्म्स द कंक्लूसिव रिसर्च। इज इट ओके? राइट? कोई भी रिसर्च ऑलवेज गोज फ्रॉम exploratory stage to either descriptive stage or experimental stage. But all the researchers should start with exploratory, isn't it? Right? So जो hypothesis की बात हम लोग कर रहे हैं, hypothesis comes under the has been suggested through the exploratory research. Is it okay? Right? So ये चीज यहाँ पे नोट्स में है आगे। सो हाउ वी डिसाइड द रिसर्च डिजाइन, अभी हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। तो रिसर्च डिजाइन इज एक्चुअली स्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च एक्शन। अगर हमने ब्लूप्रिंट गलत बना लिया तो हमारा घर क्या हो जाएगा? नहीं, हो सकता है कि जाड़ों में धूप ना आए और गर्मियों में खाली धूप आए, राइट? इजंट इट? ठीक। बारिश हो तो बारिश में
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की, जैसे मान लीजिए इस एंगल पे हो रहे तो हमेशा पूरा पूरा पानी अंदर आए, तो किसकी गलती थी? That is the structuring of the problem, isn't it? So same thing happened with the research also. So treatment of the research problem actually depends upon the nature of the problem. Nature of the problem is different domains have different type of treatment. तो ये आपका एरिया है जो डोमेन का. The second thing that is common to all is extent or level of the existing knowledge, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. Is it okay? Right. Now the next is the selection of the research methodology. Broadly, we divide our research methodology into two parts. One is the experimental research, जो अभी हमने आपको बताया. Objective of the experimental research is to establish cause-effect relationship. Right? Approach कैसे होती है? We deliberately make certain things constant and we deliberately change the treatment जिसको हमको study करना. That is known as experimental research. Is it okay? The other one is, so other one is a non-experimental research. As a researcher, we don't manipulate anything. जो हमको दिख रहा है, जो हमको मिल रहा है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? Adopt कर लेते हैं. So that is non-experimental research. So in the non-experimental research, we have exploratory research as well as we have descriptive research. आप पैसिवली जो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सब हम लोग क्या कर ले रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं. ठीक. रिसर्चर का रोल कहां पे ज्यादा होता है? नॉट फॉर द रिसर्च, फॉर द रिसर्च डिजाइन. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंट ऐसे फॉर्म करना पड़ेगा कि जो जितने बाकी फैक्टर्स हैं, जिसको हम लोग एप्सिलॉन फैक्टर्स कहते हैं, उनको कांस्टेंट करें, और जो हमारे ट्रीटमेंट फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू वो हो रहा एक्सप्लेनेटरी फैक्टर्स है, उनको चेंज कराया. रोल ऑफ द रिसर्चर इज नॉट दैट मच vis-a-vis the research design in the non-experimental. Is it okay? So ये तो हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं कि रिसर्च डिजाइन इज ए प्लान फ्रेमवर्क और ब्लूप्रिंट फॉर द रिसर्च प्लान ऑफ एक्शन. आप यहाँ पे पूरी सब चीजें डिसाइड कर लेते कि क्या करना है. एज फॉर एज द पब्लिकेशन इज कंसर्न, आइदर द थीसिस और द रिसर्च पेपर्स. ठीक. हर रिसर्च पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देना होता है कि व्हाट इज द रिसर्च मेथोडोलॉजी यू हैव अडॉप्टेड. तो दैट इज एक्चुअली द रिसर्च डिजाइन. ठीक. ये हम लोग थीसिस में भी करते हैं. तो इवन इफ द प्रॉब्लम इज डिफाइंड वेल, अगर हमने उसको अच्छे से प्लान नहीं किया है तो उसका रिजेक्शन क्यों होता है? कि बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो रियल अप्रोच थी वो आपने यूज नहीं करी है, तो ऑब्वियसली योर रिजल्ट्स आर कैन बी कंप्रोमाइज. इज इट ओके? राइट. सो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, द टाइप्स हो गया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम, सो इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम फेस. रिमेंबर, प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि समथिंग वेंट रॉन्ग. हम लोग जब बचपन में अर्थमेटिक्स या एल्जेब्रा के क्वेश्चंस करते थे, उसको क्या कहा जाता था? प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करो, प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करो. तो क्या कोई चीज गलत हुई थी वहां? Means whenever some decision making is involved, wherever some study is involved, that is technically known as problem. Right? So research is not a firefighting operation. कोई चीज गलत हो गई उसको सही करना नहीं होता. रिसर्च इज डिफरेंट. सो वी यूज द वर्ड प्रॉब्लम इन ए टेक्निकल मैनर. प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि कोई परेशानी पड़ी हुई है. इज इट ओके? राइट. सेकेंड क्या होता है? कंक्लूसिव रिसर्च. कंक्लूसिव रिसर्च में क्या होता है कि हम कंक्लूड करते हैं. तो देखिए जो वर्ड्स यूज किए गए, इट असिस्ट इन डिटरमिनिंग. डिटरमिन करने का वर्ड हम लोग कब करते हैं? व्हेन वी हैव सम प्रीवियस नॉलेज. हम लोग को कंक्लूड करना, हमको फाइनल सोल्यूशन देना. इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन. तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिसर्चेस जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हो गया? डिस्क्राइब करना. एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या होता है? टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इज इट ओके? राइट. तो थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी डिस्कस कर लेते हैं. राइट. सो सर्वे ऑफ सेकेंडरी डेटा ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फिर दोबारा नहीं करते हैं. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपीरियंस सर्वे मींस टॉकिंग टू
नॉलेजेबल पर्सन। अगर हम लोग सैम्पलिंग के बात करें तो किस तरह से इन नॉलेजेबल पर्सन को हम सेलेक्ट करते हैं? दैट इज ए स्नोबॉल सैम्पलिंग। मान लीजिए आप हमारे पास आए, आपने कहा, आप जैसे अभी कविता जी आए, उन्होंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, तो यू इफ यू कॉन्टेक्ट कविता जी, आप उनसे और क्या पूछ सकते हैं कि मैम और कौन लोग हैं जो हमको इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? तो दैट इज नोन एज स्नोबॉल। So we use snowballing so to have the experience survey, right? हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मल्टीप्लिसिटी की तरह से मूव करते रहते हैं। The same thing happens in the literature review also. आपने एक पेपर पढ़ा, पेपर पढ़ने के बाद जो लास्ट में रेफरेंसेस होते हैं वो क्यों दे रखे होते हैं? That is for snowballing purpose, कि आप इनके रिसर्च पेपर्स को भी देख सकते हैं। You may have some idea about the research, isn't it? Right. सेकेंड एस्पेक्ट पे आ रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च हियर इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? नंबर वन, आप प्रॉब्लम को बता सकते हैं, इश्यू को बता सकते हैं और लोगों का व्यू ले सकते हैं, राइट? जो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। सिंस यू हैव इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम छुपी हुई नहीं रहेगी। दैट इज नोन एज डायरेक्ट अप्रोच और नॉन डिस्गाइज्ड, इजंट इट? अप्रोचेस कौन से यूज किए जाते हैं? मान लीजिए हमको जैसे किसी उस पर रिसर्च करनी है, कि जैसे मान लीजिए हमको ये देखना है कि टेक्नोलॉजी का हम लोग के इमोशनल क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है, जो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, राइट? हमको जैसे हमको ये चीज चाहिए, हमको उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना, हमारे दिमाग में ये कंस्ट्रक्ट है। अभी हम इस प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ये क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, राइट? तो आप क्या करेंगे कि हमारे पास ये, हमको इस पर रिसर्च करने, तो यू विल बी गिविंग सर्टेन सजेशंस, ठीक, राइट? ये हमने कहा कि हमको इस पर रिसर्च करनी है, बताइए हम क्या क्या करेंगे। मान लीजिए हमारे पास टाइम है तो हम इस प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर दिया। आप जो जो सजेशन दे रहे हैं वो उन सजेशंस को हम नोट डाउन करते जा रहे हैं, राइट? दिस अप्रोच इज नोन एज फोकस ग्रुप डिस्कशन, राइट? व्हाई दिस इज अ ग्रुप डिस्कशन? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। एंड व्हाट इज अ फोकस ग्रुप? बिकॉज दिस इज बेस्ड अपॉन द सर्टेन प्रॉब्लम, राइट? हमारा रोल क्या होगा? आई एम ए मॉडरेटर, जो हम इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहे। तो राइट, व्हाई दिस इज अ डायरेक्ट अप्रोच, हमने प्रॉब्लम आपको बता दिया। व्हाई दिस इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का सजेशन आ जाएगा। तो वी हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ सजेशन, जिसको हम आगे अपने रिसर्च में यूज कर सकते हैं। द अदर अप्रोच इज द डेप्थ इंटरव्यू। आप किसी एक्सपर्ट के पास गए, उससे आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि हमको इस पे करना है, राइट? मान लीजिए जो लोग इस पे वर्क करते हैं, मान लीजिए साइकोलॉजिकल वेलबींग पे वर्क करते हैं, जो इससे बड़ा चैलेंज हो रहा है, तो उससे पूछ सकते हैं हमें क्या क्या स्टडी करना। तो आप धीरे धीरे उस पर्सन को क्या करेंगे? प्रोब करेंगे, सो टू यू हैव अ better knowledge of the situation, a better knowledge of the things that are to be covered. That is known as depth interview. Focus group discussion कैसे वर्क करता है? Horizontally वर्क करता है, right? We have a broad range of issues. Depth interview कैसे वर्क करता है? Vertically करता है, जो हम deep down करते हैं। दोनों की अपने इंपॉर्टेंस है, and both should be used as supplementary, not as a complement. Is it okay? Now there are some indirect approaches also. जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले, कई जगह हमने यूज किया, उतना ऐसे ट्रू नहीं है। जब शुरू शुरू में एसयूवीज आई थी लखनऊ में, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो अगर किसी पर्सन ने एसयूवी खरीदा है और आप उससे पूछे कि आपने एसयूवी क्यों खरीदा है, राइट? तो नॉर्मली आंसर्स हम लोग को क्या मिलते थे? सेफ होती है, लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए बहुत यूजफुल होती है, राइट? ठीक है, हम लोग बहुत सारे लोगों को उसमें बिठा सकते, इस टाइप के आंसर देते थे। अगर आप उसी पर्सन से पूछिए कि तुम्हारे नेबर ने एसयूवी क्यों खरीदा था, क्या आंसर मिलता? नक्शेबाजी के लिए खरीदा था, राइट? राइट, क्या मिलता था? अपने आप को नेता समझता इसलिए खरीदा था, इजंट इट? राइट, उसकी वो अपना पावर दिखा रहा है। उसने इसलिए खरीदा कि जब दैट पर्सन इज गोइंग ऑन सम राउंड अबाउट, तो उसको जो पुलिस वाला है वो नहीं रोकेगा, ट्रैफिक वाला, थिंकिंग दैट यू आर ए बिग पर्सन। Isn't it? The same person is giving two different answers. Difference क्या आया है? You have provided him a mask. ठीक, आपने कहा कि why your neighbor has bought, तो आपने उसको मास्क दे दिया,
उस मास से वो क्या कर रहा है, अपनी ओपिनियन बता रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट पूछते रहते तो कभी भी क्या ये जो पावर इक्वेशन वाली चीज थी या ये जो शो ऑफ की चीज थी, ये आपके क्या कंसिडरेशन में आ पाते, नहीं आ पाते। आप हमेशा ये सोचते हैं कि एसयूवी क्यों खरीदी गई, इसकी स्टडी क्या होगी, कि ये उनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये माइलेज बेनिफिट्स है, राइट। बट वंस यू हैव प्रोवाइडेड अ मास टू दैट पर्सन, वो पर्सन क्या प्रोवाइड कर रहा है, it is giving us something that is not so apparent. So this type of approaches is known as indirect approach or the projective approach. Is it okay? जहां पे हम पर्पस नहीं बताते, हम क्या बताते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बताते हैं। हम लोगों ने कई एक्सपेरिमेंट्स भी करे थे, जब हम लोग इसको क्लास में पढ़ाते हैं इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास। आपसे कहा गया कि आप एक स्टोरी लिखिए, राइट। मान लीजिए आप कुछ भी एक पिक्चर बना के दे दीजिए, आप एक स्टोरी लिखिए, कुछ भी स्टोरी लिख सकते हैं, राइट। सो नॉर्मली व्हेन अ पर्सन राइट्स द स्टोरी, तो वो अपने के जो इनर फीलिंग्स है उसको डेवलप कर लेता है, राइट। कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट है यहाँ पे, इस अप्रोच को क्या कहते हैं, ये तो मालूम होनी चाहिए सबको, राइट। टैट, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, थेमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट, राइट। तो दैट इज नोन एज अ टैट टेक्निक, जहां पे हम, ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में यूज किया जाता है, एनडीए सीडीएस वगैरह में क्या करते हैं, आपको एक स्टोरी लिखवाते हैं, तो दैट इज नो, क्या हुआ, गूगल करो, राइट, ठीक। इज इट ओके, राइट। दैट दैट टेक्निक इज नोन एज टैट। तो ये जो क्वालिटेटिव अप्रोच की जो टेक्निक्स है फॉर द इनडायरेक्ट, दैट इज नोन एज thematic appropriation test. Is it okay? Right? So, number of techniques are there like association technique. आपको कोई एक वर्ड दे दिया, आपसे पूछा कि व्हाट इज द फर्स्ट थॉट आपको जो आ रहा है, आपको एक सेंटेंस कंप्लीट करने को बोल दिया गया, यू हैव टू से कि यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्टोरी, राइट। और एक्सप्रेसिव टेक्निक का तो हमने एग्जांपल लिया ही था कि आपके नेबर ने क्यों परचेस किया है एसयूवी। इज इट ओके? After that, we have two broad category of the descriptive research design. One is the cross sectional. जब हम लोगों ने बचपन में क्रॉस सेक्शनल कट किया था बायोलॉजी में, तो क्रॉस सेक्शनल कट क्यों करा जाता, राइट, कि उस प्लांट की उस समय की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमको मिल जाए। तो द क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज एक्चुअली अ वन टाइम स्टडी, एक वन टाइम स्टडी होती है, और किस लिए किया जाता है, for complete description of that problem. So that is known as cross-sectional study. Is it okay? जब हम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में मूव करते हैं तो क्या चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, राइट। तो जो टाइम सीरीज स्टडीज है दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, राइट। इसका भी हम लोग एक एग्जांपल से डिस्कस भी करेंगे। सो there are two type of studies. One is the cross sectional study, other is the longitudinal study, right? हम एक एग्जांपल लेते हैं दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए। अगेन अ मार्केटिंग एग्जांपल, राइट, अगेन अ मार्केटिंग एग्जांपल, लेकिन बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। एक शहर में देयर आर 3 ब्रांड्स ऑफ ब्रेड्स, राइट। जो मॉर्निंग ब्रेड हम लोग खाते हैं, 3 ब्रांड है, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मिल्क मेड वगैरह, राइट। 2 पीरियड में सर्वे किया गया है, 1 साल के गैप में। 1000 लोगों का ये मतलब 1000 में 200 जो है जो ब्रांड ए परचेस करते हैं फर्स्ट पीरियड में। मान लीजिए दैट सर्वे वाज ऑन द 1 जनवरी 2023 और सेकंड पीरियड क्या, 1 जनवरी 2024, राइट। ये पोजीशन है, राइट। मतलब ब्रांड ए के सब्सक्राइबर कितने हैं, 20%, ब्रांड बी के सब्सक्राइबर 30%, और ब्रांड सी के सब्सक्राइबर क्या है, 50%, ठीक। 1 साल बाद या एक लॉन्ग पीरियड के बाद अगेन द सर्वे इज बीइंग डन, नाउ द फिगर्स रिमेन्स द सेम, राइट। ये क्वेश्चन है मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स का। मार्केट कैरेक्टरिस्टिक ब्रेड की क्या है लखनऊ में, देयर आर 3 ब्रांड्स ऑफ द ब्रेड, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, राइट। आप इससे क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे कि ब्रांड पोजीशन बिकम स्टेबलाइज, राइट। मार्केट लीडर हमेशा कौन रहेगा,
ब्रांड सी रहेगा। और सेकंड पोजीशन पे कौन रहेगा? ब्रांड बी। और लास्ट पोजीशन पे क्या रहेगा? ये आप इन्फ्लुएंस निकालेंगे, राइट। इसका मतलब देयर वोंट बी एनी चेंज इन द, राइट। मान लीजिए आपको ये चीज ब्रांड सी, मान लीजिए ये चीज आपको ब्रांड ए वाले ने दी, ठीक। तो आप उसको जा करके क्या रिजल्ट बता देंगे कि आपका प्रोडक्ट हमेशा पीछे रहेगा, आप कुछ और एक्सपेक्ट ना करें। इज इट ओके? राइट। ये जो स्टडी है, दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, वन टाइम स्टडी की गई है। इसको अगर हम दूसरी तरह से स्टडी करें, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। वी सेलेक्टेड 1000 डेडिकेटेड रिस्पॉन्डेंट। उन्हीं का सर्वे फर्स्ट पीरियड में भी किया गया, उन्हीं का सर्वे सेकेंड पीरियड में भी किया है, एंड दैट इज द इंफॉर्मेशन। कॉलम्स यहाँ रो साइड में आप देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन किसकी है? पीरियड 1 की है। अभी भी ब्रांड ए की पोजीशन क्या है? 20%, 30% एंड 50%, राइट। ये रो की इंफॉर्मेशन है। अब कॉलम की इंफॉर्मेशन किसमें दी गई है? ब्रांड परचेज इन पीरियड 2, ठीक। अभी भी पोजीशन क्या है? सेम पोजीशन है, इजंट इट? ठीक। अब जरा आप इसको इसके मिडिल में देखें, ये 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो फर्स्ट पीरियड में ब्रांड ए यूज करते थे, अभी भी क्या यूज कर रहे हैं? ब्रांड ए यूज कर रहे हैं। तो क्या इनको लॉयल्टी कह सकते हैं? राइट। दूसरे डायगोनल एलिमेंट पे जाइए, ये 100, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले भी ब्रांड बी यूज करते थे, अभी भी क्या यूज करते हैं? right? ये क्या है? 275। पहले भी ब्रांड सी यूज करते थे, अभी भी क्या यूज करते हैं? ब्रांड सी यूज करते हैं। तो अगर हम लॉयल्टी परसेंटेज ब्रांड ए का निकालें तो कितना आ रहा है? 50% आ रहा है। आ रहा है, 200 में 100 लोग लॉयल है। इनका कितना आ रहा है? 33%। और इनका कितना आ रहा है? 55% आ रहा है, इजंट इट? इसका मतलब, और ऑब्वियसली इन सब प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लॉयल्टी होती है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को कंसीडर करें तो आपको क्या मिल रहा है? हाईएस्ट लॉयल्टी परसेंटेज किसके पास है? ब्रांड सी के पास है। हमेशा ब्रांड सी क्या रहेगा? मार्केट लीडर रहेगा। सेकंड हाईएस्ट किसके पास है? ब्रांड ए के पास है, नॉट विद द ब्रांड बी, राइट। इसका मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम कौन सी चीज आ जाएगी? सेकंड नंबर पे ब्रांड ए आ जाएगी, और थर्ड पोजीशन पे कौन आ जाएगा? राइट। तो आप क्या कहेंगे अगर ब्रांड ए के ओनर के पास जाएंगे कि हैव फेथ, आपका प्रोडक्ट कुछ दिनों में क्या हो जाएगा? दैट विल बी एट द बेटर पोजीशन, इजंट इट? राइट। ये चीज आपने कैसे निकाली है? बिकॉज ऑफ लॉयल्टी, राइट। यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, जो ब्रांड बी है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, तो उसकी लॉयल्टी कम है, लेकिन वो कितने लोगों को अट्रैक्ट कर ले रहा है? 25 फ्रॉम ब्रांड ए एंड 175 फ्रॉम ब्रांड सी। इसका मतलब वो 66% लोगों को क्या ला रहा है? अट्रैक्ट कर दे रहा है। इसका मतलब है दैट आर हैविंग अ बेटर एडवर्टीजमेंट एंड बेटर सेल्स स्ट्रेटेजी, जिससे लोग उसके पास क्या आ जाते हैं? खींचे चले आते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है? उसको वो सस्टेन नहीं कर पाता, दे लूज। इज इट ओके? ठीक। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जब मार्केटिंग में पढ़ाते हैं तो दैट इज नोन एज ब्रांड स्विचिंग मॉडल, राइट। इसको जब फिनांस में पढ़ाते हैं तो दैट इज नोन एज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्विचिंग मॉडल। और जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाते हैं तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्कोव चेन, राइट। ठीक। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्कोव चेन, स्विचिंग हो रही है, इजंट इट? अब अगर आपने प्रॉब्लम को क्रॉस सेक्शनली डिसाइड कर लिया तो आपका स्टडी क्या हो जाएगा? इट विल बी गिविंग यू अ बैड रिजल्ट। और अगर आपने सही से डिसाइड किया तो आप क्या सजेशन देंगे? दैट इज ए बेटर डिसीजन। तो ये डिफरेंस दोनों में क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरिंग, कि हम प्रॉब्लम को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, राइट। सो इट इज इजियर टू से कि हमको हमारी प्रॉब्लम शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड। दिस इज अ रोल ऑफ रिसर्च डिजाइन, कि किस तरह से हम चीजों को, अपनी स्टडी को इंप्रूव कर सकते हैं। इज इट ओके? एक एग्जाम्पल और, दो बजे, एक एग्जाम्पल और, ये भी हमने एग्जाम्पल कुछ को दिखाया है, मे बी लोग फैमिलियर हो।
दिस इज द कंजम्पशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बाय वेरियस एज ग्रुप्स। ठीक, आप एज ग्रुप देख रहे हैं। फ्रॉम दिस स्टडी हमने क्या देखा, 1990 में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले जो सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हैं वो 10 to 19 में, सबसे कम क्या है 50 प्लस में, राइट। दिस इज द पैटर्न एवरीवेयर, इजंट इट? ओके, ठीक। हॉरिजॉन्टली तो बहुत मतलब नहीं है, सभी में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मामला, राइट। और हमने ये इन्फ्लुएंस निकाल लिया, विद एज सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन डिक्रीजेस। आप समझे? वी बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कोई भी एक्स्ट्रा डोमेन नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। सिंपली हमने डेटा को प्लान करके ये निकाला कि विद एज जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन गॉट डिक्रीज। सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलिए। ठीक, अब अगर इसको हम फर्दर स्टडी करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे गैप कितने साल का है, 10 ईयर्स का है। और यहाँ पर भी गैप कितने ईयर्स का है, 10 ईयर्स का। इसका मतलब those who are in the age group 10 to 19 in 1990 वो नेक्स्ट डिकेड में किस में मूव कर जाएंगे, इसमें मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट डिकेड में किस में मूव कर जाएंगे, 30 to 39 में। नेक्स्ट डिकेड में किस में मूव कर जाएंगे कि नहीं, right? Means those who are in the age bracket 10 to 19 in 1990 will be in the age bracket 20 to 29 in the next decade, move कर जाएंगे, right? Means यहाँ पे actually जो observation करना चाहिए था वो कौन सा करना चाहिए, not horizontal not vertical, कैसे करना चाहिए, diagonal। diagonal क्या दे रहा है, डिक्रीज हो रहा है, right? कहीं पर भी देख लीजिए 63 76 71, इधर देख लीजिए 45 47 59 52, ठीक, 34 41 50। तो ब्रॉडली इंप्रेशन क्या मिल रहा है, कोई डेटा एनालिसिस अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, ब्रॉडली इंप्रेशन मिल रहा है विद इंक्रीज ऑफ एज सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन देखिए, इजंट इट, राइट। सो हम लोग का ये परसेप्शन हो सकता है कि एज के साथ सॉफ्ट ड्रिंक कम हो रहा है, बट इफ द रिसर्च इज प्रॉपरली डिजाइन तो दिस इज द डिफरेंस, राइट। तो हम लोग ब्रेक करते हैं, खुशबू भी अच्छी सी आ रही है, राइट। सो अप टू दिस पॉइंट क्या पॉइंट हम रखना चाह रहे थे कि इफ द स्टडी इज नॉट वेल प्लान, ठीक, आप इस डेटा पे चाहे जो भी एनालिसिस लगा दें, इफ दैट इज नॉट वेल प्लान हमारे रिजल्ट्स क्या हो जाए। तो दैट इज द रोल ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रॉब्लम। इसीलिए एनी रिसर्च पेपर आपसे क्या चाहता है कि आप अपनी प्लानिंग बताइए कि हाउ यू परफॉर्म द स्टडी। So, right. So, I was mentioning that whenever we should consider about the measurement, right? So, Abhishek, right? So, for measurement purpose, kindly go through the class 6 chapter where MKS, CGS, FPS were introduced. What was the objective of introducing is that we make certain rules and we measure those things as per the rule, right? So this chapter is actually dedicated to that part only. So we can define measurement or scaling techniques as process of assigning meaningful and relevant numbers, right? The two important word is meaningful, right? Meaningful means they make sense to the purpose, right? And the next one is the relevant numbers, means that gives us some characteristics of that thing to be measured, to the characteristics of the object as per some specified rule, right? So that rule is important whenever we consider any type of measurement. Is it okay? Right. So the detail will be taken tomorrow in that session. I am just introducing the 4 primary scales of the measurement. The first one is the nominal scale. Nominal scale means we use numbers for nomenclature purpose, right? Means it gives only the name. Suppose the room number means that this is room number 6. It has no other meaning, right? It is just a number 6 only, right? In the same way, like the shirt number that we put on any players. Suppose Saurav Ganguly का 99 था,
So that is just for the identification purpose. Is it okay? Right? 99 ही था ना शायद? Okay. Right. Anyway, जो भी था. So here numbers are being used for nomenclature purpose. Right? So in the same way, suppose we have to include gender in some question, right? So normally we put male and female and others, and we put certain numbers 1, 2, 3. So 1, 2, 3 is just for the identification purpose. So that is known as nominal scale. So this is also known as categorical scale. Here we use number for the categorical thing. And this type of scale is known as non-metric scale. It is not used for measurement purpose. What is the implication of this? When we decide the tool, suppose we have to decide the measure of center tendency. So in this case, we go with the mode only, right? Suppose we want to establish some relationship, including the nominal scale. So in that case, we go with the cross-tab or chi-square test of independence only. And that will be taken in due course. So it is important that all the future analysis is based upon the scale, whatever scale you are using. So this is the nominal scale. The next one is the ordinal scale, which is also known as rank scale. So in the nominal scale, we have name as well as order is there, right? So order is there. Means the rank means the rank number 1 and rank number 2, right? So rank number 1 would be either higher or lower as compared to rank number 2. So it has name as well as order is there. If we collect data in the ordinal scale, then obviously we go with the median. अगर हमको center tendency निकालने, then we go with the median. वो आपको बाद में मिल जाएगा. Suppose we have to establish the relationship. तो relationship के लिए हम लोग क्या use करेंगे? We use qualitative correlation coefficients. राइट जैसे आप लोगों ने रैंक कोरिलेशन सुना होगा कैंडल्स कोएफिशिएंट सुना होगा तो दैट इज यूज्ड फॉर द ऑर्डिनल स्केल द नेक्स्ट वन इज द इंटरवल स्केल व्हिच डिफाइन अ रेंज एंड द नंबर्स आर इक्वली डिवाइडेड अमंग देम so it has name, it has order, it has difference also. Means difference between 1 and 2 is same as difference between 2 and 3. Right? Difference between 1 and 4 is same as difference between 4 and 7. Is it okay? So it has constant order also, which is not there in the rank scale. And this scale is termed as a metric scale. So whatever the scale we use, whatever the terms we use, means whatever the statistical measure we use, actually comes under the metric category scale. Like if you have to establish the relationship, we can go with correlation and regression. Fine. If we have to use the center tendency, then mean can be used. If you have to use the test, then parametric test can also be used. So this is the interval scale. Last one is the ratio scale, which is the absolute measurement. It has name, order, difference, plus ratio also. Means 10 is 5 times of 2, right? Our 20 is 2 times of 10, right? So along with the order, because it always has a particular absolute zero. So that is known as ratio scale. So interval scale and ratio scale both comes in the category of the metric scale. The tools we decide, and the first two comes under non-metric scale. Okay. So the objective of studying this chapter is to use which type of measurement scale is being used, and accordingly we go with the tools that we are going to use, right? So this is the measurement scale. We have a number of scaling techniques also, right? Number of scaling techniques हम लोग कैसे कर सकते हैं? Number one, we normally say that किस तरह से बोलते हैं कि आज का जो टेम्परेचर, आज ज्यादा गर्मी है कल के मुकाबले, राइट? इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक? दूसरा हम ये बोल सकते हैं टुडेज टेम्परेचर इज 44, कल का टेम्परेचर कितना था? 41 था. इज इट ओके? तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, वी आर गिविंग अ वैल्यू टू द टेम्परेचर.
So the first one is the comparative scale where we compare the things, right? So obviously it is a dependent scale. And the next one is the non-comparative scale, that is a independent scale, right? Means हमने टेम्परेचर बोला, या जैसे किसी ने बोला कि हमारी हाइट 165 सेंटीमीटर है, इनकी हाइट मान लीजिए 175 सेंटीमीटर, इज इट ओके? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं कि ही इज टॉलर देन मी. तो ही इज टॉलर देन मी इज द कंपैरेटिव, एंड 165 and 175 आर द नॉन कंपैरेटिव स्केल. तो ये जो कंपैरेटिव स्केल है ये किसको फॉलो करते हैं? ऑर्डिनल स्केल को फॉलो करते हैं, राइट? इट इज द कंपैरिजन, इजंट इट? और नॉन कंपैरेटिव स्केल किसको फॉलो करते हैं? दे फॉलो द मैट्रिक स्केल. इज इट ओके? राइट. दोनों में बेनिफिट क्या है? हमको जनरलाइज करना है तो कौन सा स्केल बेटर रहेगा, कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव? मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारे यहाँ का टॉपर है, किसी पर्सन को बताया, वो पर्सन दूसरी जगह जाएगा तो टॉपर भी रह सकता है, टॉपर नहीं भी रह सकता. लेकिन हमने कहा कि दैट पर्सन हैज सिक्योर्ड 9 ऑन ए सीजीपीए ऑफ 10. तो 9 ऑन ए सीजीपीए ऑफ 10 हमेशा क्या रहेगा? इट विल बी देयर. सो अगर हमको कंपेयर करना है, राइट, तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसको जनरलाइज नहीं कर सकते. सो फॉर द जनरलाइजेशन पर्पस नॉन कंपेरेटिव स्केल्स आर बेटर देन द कंपेरेटिव स्केल. इज इट ओके? सो ऑब्वियसली क्वेश्चन उठता है कि व्हाई वी स्टडी द कंपेरेटिव स्केल, राइट? सपोज हमने ये क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए हम ये देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन क्यों लेते हैं. नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 जॉब. इज इट ओके? और मान लीजिए हमने दोनों से कहा कि 1 to 10 की स्केल पे इसको आप नंबर दे दीजिए. सपोज किसी पर्सन को जॉब और नॉलेज इक्वली इंपॉर्टेंट लगते हैं, राइट? तो उसने दोनों को क्या दे दिया? 8 and 8 दे दिया, राइट? नाउ व्हाट इंप्रेशन यू फॉर्म दैट फॉर दैट पर्सन नॉलेज एंड जॉब बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. इज इट ओके? तो अगर हमको इन दोनों में से आइडेंटिफाई करना है कि वेदर नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन और जॉब एस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द एजुकेशन, ये कांट डू. लेकिन हम उससे कहते हैं काइंडली रैंक एज पर द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस द फैक्टर नेसेसरी फॉर द एजुकेशन. तो नॉलेज और जॉब को देखेगा. अगर उसको थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगता है तो जॉब को 1 दे देगा, नॉलेज को क्या दे सकता है? 2 दे सकता है. इजंट इट? राइट? So for the finer discrimination, obviously the comparative scales are better than the non-comparative scale. Is it okay? Fine. So actually we introduce all the tools. Objective क्या होता है कि as per the situation, as per the requirement, we decide with which tool we should go. Fine. So this is related to measurement and scaling technique. Okay? आपको डिटेल आगे कराया जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग. नॉर्मली वी कांट कलेक्ट द होल अमाउंट ऑफ द डेटा, सो वी गो बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल कंसिडरेशन अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. वी गो विद द representative part of the population. The important word is representative. Let us take an example. मान लीजिए हमको टास्क दिया गया, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द इनकम लेवल ऑफ लखनऊ. इनकम लेवल ऑफ लखनऊ, लखनऊ में जो लोग जॉब करते हैं, लखनऊ में जो लोग रहते हैं, उनका इनकम लेवल मालूम करना है, राइट? सपोज हमने सोचा, मान लीजिए हम रहते हैं बटलर पैलेस कॉलोनी में, विच इज एन आईएस कॉलोनी. फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि बटलर पैलेस इज ए पार्ट ऑफ लखनऊ, दैट इज ए सबसेट ऑफ लखनऊ, राइट? सो हमने बटलर पैलेस का सर्वे कर लिया और बता दिया कि लखनऊ की पॉपुलेशन की एवरेज इनकम इतनी है. इन द सेम वे सपोज हम किसी स्लम एरिया के पास में रहते हैं, हमने सोचा दैट स्लम एरिया इज ए पार्ट ऑफ लखनऊ. हमने उस स्लम एरिया का सर्वे कर लिया और बता दिया कि लखनऊ की इनकम इतनी है. दोनों का ही जो आंसर्स होंगे क्या होंगे? बायस, बिकॉज both are part of Lucknow, both are subset of Lucknow, but not the representative. Is it okay? कोई और एग्जाम्पल ले. मान लीजिए हमको किसी चीज पे ओपिनियन लेनी है, राइट? उस ओपिनियन में द लैंग्वेज यूज, उस ओपिनियन में आप
जिस पार्ट ऑफ द कंट्री में रहते दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। सेकेंड में जो उसमें ओपिनियन लेना है वो दैट इज अ जेंडर सेंसिटिव इशू, इज इट ओके, राइट। तो अगर जेंडर सेंसिटिव इशू है तो उसमें हमने जो सर्वे किया हमने सिर्फ बॉयज को ले लिया, तो क्या वो रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा? जेंडर सेंसिटिव इशू का मतलब है बॉयज का रिस्पॉन्स अलग होगा और गर्ल्स का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, अलग। तो फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट वी शुड इंक्लूड बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, इज इट ओके। दूसरे पार्ट में मान लीजिए हमको फूड हैबिट्स पे सर्वे करना, नॉर्मली हमारे कंट्री में जो फूड हैबिट्स है वो जेंडर से डिसाइड नहीं होते, कैसे डिसाइड होते हैं, द रीजन वेयर यू आर लिविंग, ओके। और उसमें हमने सोचा कि हम रिप्रेजेंटेटिव ऐसे बनाएंगे कि इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होने चाहिए। हमने ये अटेम्प्ट नहीं किया कि सो टू इंक्लूड द पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, इज इट ओके। सो इट इज इजियर टू से कि आवर सैंपल शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव थिंग। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि जब भी हम लोग सैंपल प्लान करें वी हैव टू डिफेंड दैट आवर सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर। दैट्स व्हाई अगर आप लोगों ने रिसर्च पेपर्स पढ़े होंगे, इन द एनालिसिस जो पहली टेबल दी जाती है वो क्या दी जाती है, अगर वो सैंपल बेस्ड सर्वे होता है आप सैंपल का डिस्क्रिप्शन देते हैं। क्यों देते हैं हम लोग सैंपल का डिस्क्रिप्शन? इट इज फॉर द ऑडियंस, इट इज फॉर द एडिटर, इट इज फॉर द रिव्यूअर टू डिसाइड वेदर दैट सैंपल प्रोवाइड्स द रिप्रेजेंटेटिव सबसेट और is it okay, right? So we go with the representative subset of the population, right? इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, व्हाट इज द रेलेवेंट पॉपुलेशन जहां से हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है। नेक्स्ट क्या होता है कि व्हाट इज द सैम्पलिंग प्रोसेस, इसको सैम्पलिंग डिजाइन भी कहते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट क्या होता है, साइज ऑफ द सैंपल, राइट। साइज ऑफ द सैंपल क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। सपोज दिस इज साइज ऑफ द सैंपल, और सैंपल कैन नेवर बी द परफेक्ट रेप्लिका ऑफ द पॉपुलेशन, तो देयर मस्ट बी सम एरर। चाहे आप कुछ भी करें हमेशा क्या होगी, एरर का मतलब देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सैंपल। सपोज इसके बीच में हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ओके, इज इट ओके। तो अगर आप इसको देखें तो व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दिस, विद इंक्रीज ऑफ सैंपल साइज ऑब्वियसली सैंपलिंग एरर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो गई। मान लीजिए हमको कुछ लेना, हमने खाली इन तीन से पूछ लिया तो ऑब्वियसली दैट कैन बी बायस। इसके बजाय अगर हम लोग ने पूरे सभी ऑडियंस से चीज डिस्कस करी सो दैट विल बी मोर रिप्रेजेंटेटिव, राइट। विद इंक्रीज ऑफ सैंपल, सैंपलिंग एरर का मतलब जो ब्रॉड क्या होता है, जो डिफरेंस बिटवीन द सैंपल रिजल्ट्स एंड द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिवनेस उसमें आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इज देयर एनी पॉइंट टू इंक्रीज द सैंपल साइज, क्योंकि सैंपल साइज इंक्रीज करने का नुकसान क्या होता है, कॉस्ट बढ़ती है। तो देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट वैल्यू एनालिसिस। इनिशियली आपको वैल्यू मिल रही है क्योंकि विद इंक्रीज ऑफ सैंपल साइज क्या हो रहा है, आप खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन एरर कम होती जा रही है। आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज जो एरर में डिक्रीज है दैट इज नॉट अप्रिशिएटेड, right? So we should stop at this position and this is known as optimum sample size. आपका एक सेशन इस optimum sample size पे related to process of selection, this probability sampling is also known as random sampling and non-probability sampling is known as non-random sampling. Is it okay? A very important thing, random in English and random in research or statistics are 180 degree different, right? हम लोग इंग्लिश में रैंडम किसको कहते हैं, किसी को भी, राइट। लेकिन एक्चुअली रैंडम का क्या मतलब होता है, रैंडम का मतलब होता है विदाउट एनी बायसनेस। सो जब हम लोग सैम्पलिंग की बात करते हैं तो द रूल बेस्ड सैम्पलिंग इज नोन एज रैंडम सैम्पलिंग, इज इट ओके। और जो नॉन रूल बेस्ड होती है, जो हमारी सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करती है, हमारी ओपिनियन पे डिपेंड करती है, दैट इज नोन एज नॉन रैंडम सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, इज इट ओके ब्रॉडली। ठीक, इफिशिएंसी वाइज आपको कौन ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव लग रहा है, रैंडम सैम्पलिंग, बिकॉज अ रूल इज बीइंग, लेकिन उसमें कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व।
right? Non-probability sampling efficiency wise is inferior, but cost wise superior. One more thing, जब आप लोग सैम्पलिंग पढ़ेंगे तो रैंडम सैम्पलिंग में वी रिक्वायर कंप्लीट लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एलिमेंट, जिसको हम लोग सैम्पलिंग फ्रेम करते हैं, राइट? अगर सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल है देन ओनली वी कैन गो फॉर द रैंडम सैम्पलिंग. सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं है देन वी हैव टू गो फॉर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इज इट ओके? हम दो एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए हमको ये सर्वे करना है कि आजकल लोग किस तरह की चाय पसंद करते हैं. बहुत सिंपल है, राइट? एक हम ले रहे हैं कि एक जगह हम ले रहे हैं कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैंटीन है, साइंस कैंटीन है, वहां पे हमको सर्वे करना. इज इट ओके? और एक हमको क्या करना है जो बाहर है, मतलब रोड पे, उस पर सर्वे करना. दोनों में पॉपुलेशन में क्या हो जा रहा है? पॉपुलेशन में चेंज हो जाए. यहाँ पे कौन लोग ऑडियंस होंगे, कौन लोग आएंगे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के से कनेक्टेड है. बाहर कौन लोग आ रहे हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के नहीं. सेम चीज यहाँ पर होता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमको ये देखना है, हमको कोई सर्वे करना है रिलेटेड टू जो इलेक्शंस आ रहे हैं. ओपिनियन पोल मान लीजिए हमको करना है कि विच पार्टी इज गोइंग टू विन. ठीक, हमारा जो है हमको ये देखना है इस जो एफडीपी के पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे हमको सर्वे करना, राइट? एक दूसरा सर्वे हमको करना है ऑन द सेम टॉपिक एक नॉर्मल पर्सन से करना है. तो दोनों में क्या अप्रोच सेम होगा? पहले में क्या होगा, बिकॉज वी हैव ए लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट तो वी कैन गो विद द रैंडम सैम्पलिंग. ठीक, दूसरे में क्या है, हमारे पास लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो वी हैव टू गो फॉर सम नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग. इज इट ओके? सो इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ पॉपुलेशन जो हम इसको लेने वाले हैं. एक और चीज जो अब बहुत आ रही है विद एडवेंट ऑफ द बिग डेटा और बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सैम्पलिंग की अप्रोच में काफी चेंज होता जा रहा है, राइट? बिकॉज ऑफ ऑनलाइन थिंग्स, बिकॉज ऑफ एनालिटिक्स. So there are a different new type of sampling approaches are also there that may be covered. Is it okay? Just a broad description. पीछे इसके बाद आता है डेटा कलेक्शन, राइट? जो आपको उसमें अभी डिटेल में पढ़ाया जाएगा. डेटा कलेक्शन क्या होता है? इट इज बेस्ड अपॉन ऑल द प्रीवियस स्टेप्स. हम डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? फॉर द फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट कर सकते हैं. दूसरा क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा. दोनों के अपने मेरिट्स हैं और साथ ही में दोनों के अपने क्या है, डिमेरिट्स, राइट? सो वी कांट से दैट प्राइमरी डेटा इज ऑलवेज बेटर देन द सेकेंडरी डेटा. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. मेथड ऑफ कलेक्शन क्या होता है? एक कम्युनिकेशन के थ्रू होता है वेयर यू आस्क द क्वेश्चन एंड रिसीव द रिस्पॉन्स. और दूसरा क्या होता है? ऑब्जर्वेशनल मेथड वेयर यू ऑब्जर्व प्रेजेंट एंड पास्ट बिहेवियर. अब जैसे हम लोग जब टीच करते हैं तो कम्युनिकेशनल मेथड कैसे यूज करते हैं? हम पूछते हैं इज इट क्लियर, शुड वी गो फॉरवर्ड, नहीं? तो दैट इज अ कम्युनिकेशनल मेथड. दूसरा ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या हो सकता है? बाय ऑब्जर्विंग द फेशियल एक्सप्रेशन वी कैन ऑब्जर्व कि पर्सन को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो दैट इज नोन एज ऑब्जर्वेशनल मेथड, राइट? तो ऑब्जर्वेशनल मेथड में दिस इज द प्रेजेंट मेथड, राइट? इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट ऑल्सो, ऑब्जर्विंग फ्रॉम पास्ट ऑल्सो. तो जितना सेकेंडरी डेटा आता है दैट ऑल्सो कम्स अंडर ऑब्जर्वेशनल मेथड. क्योंकि आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? यू आर जस्ट पिकिंग द डेटा, राइट? सो इसका यह मतलब नहीं कि ऑब्जर्वेशनल मेथड इज ऑलवेज इंफीरियर. दोनों के अपने मेरिट्स हैं, अपने डिमेरिट्स हैं. और ऐसा भी रूल मान लीजिए whenever more than one methods are there, whenever more than one things are there, obviously both have some merits and demerits. Fine. इसके बाद एनालिसिस आता है. एनालिसिस का मेन पर्पस क्या होता है? टू ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम द डेटा, राइट? सो ऑब्वियसली फॉर डिफरेंट पर्सन मीनिंग मे बी डिफरेंट. इज इट ओके? टू ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम द डेटा. फाइन, जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. इसमें दो तरह की होती है. वन इज द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जो आपको क्या करता है? दैट प्रोवाइड्स ब्रॉड व्यू ऑफ द डेटा, राइट? हमको क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स अस सजेशंस.
नेक्स्ट क्या होता है, इन सजेशंस को कंफर्म करने के लिए वी गो विद द कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस. फाइन, राइट. सो ऑलवेज वी स्टार्ट विद द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, और उसके बाद हम किस पे जाते हैं, वी गो टू कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस. ओके. सो जैसा हमने बोला, इट इज टू ड्रॉ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लार्ज डेटा. इट इज नॉट an isolated activity. Whenever we say y is a function of x1, x2, x3, इसका मतलब क्या होता है कि अगर x1, x2, x3 में चेंज होगा तो y में भी क्या हो जाएगा, चेंज. तो इट इज a function of objective research question, hypothesis, sampling method, measurement and scaling technique, and data collection technique. Means all the previous steps that are there will have application on the analysis. Fine. These are the different software. Just हमने कुछ softwares को मतलब अगेन दे आर नॉट कॉम्प्रिहेंसिव. बहुत सारे और सॉफ्टवेयर है. जस्ट टू शो यू द डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ये हमने कुछ सॉफ्टवेयर आपको बता. क्वांटिटेटिव एनालिसिस एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस. फाइन. तो एज पर ये हम आपको ऐसे भी दे देंगे ना, आपको फिक्र ना करें. ओके. फाइन. राइट. लास्ट में क्या आ गया, दैट इज द रिपोर्ट, दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. फाइन. तो इसको थोड़ा सा जल्दी से हमने कर दिया बिकॉज टेक online participant. PPT is there. Okay. So now the second part of my talk is related to literature. Okay. So very important part. So there are some slides जो self explainable है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी we will discuss. हम लोग लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, टू डू गुड रिसर्च. अब इसमें कुछ बॉटम लाइन से जो हमको मान करके चलना चाहिए, वी डोंट नीड टू नो एवरीथिंग. हमको सब कुछ मालूम होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं, बट हैव टू नो द अननोन. लेकिन क्या चीज हमको नहीं मालूम है ये हमको एक्चुअली मालूम. इज इट ओके, राइट. तो हमको सब चीज नहीं मालूम होनी चाहिए. जो चीज अननोन है, जो हमारे लिए रिलेवेंट है, वो हमको मालूम. Otherwise, we can never complete the literature. So there are certain things that are to be discussed. The first question is why literature review is there. So जैसा कि हम लोग कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च या जो भी रिसर्च होती है, हम मानते हैं कि हमारा जो रिसर्च है वो कंट्रीब्यूट क्या करेगा, वो हमको हमारे सब्जेक्ट के डोमेन को ब्रॉडन करेगा. सब्जेक्ट एडवांसेस व्हेन स्टडी रिसर्च इज डिजाइन टू ऐड वैल्यू टू द प्रायर स्टडी. इसलिए हमको जरूरत क्या पड़ती है कि इससे पहले क्या काम हुआ है, प्रायर स्टडीज क्या है उसके लिए. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन. वरना क्या होगा, हम उसको रिपीट कर रहे हैं, कुछ भी हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एंड दैट कैन बी चैलेंज एवरीवन. इट आल्सो प्रोवाइड अस द गैप, जिसको हम लोग कहते हैं रिसर्च गैप, एंड द रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी जनरेटेड फ्रॉम दैट रिसर्च गैप. इज इट ओके. कई बार ऐसा होता है कि इन विच इन टर्न प्रोवाइड्स नोवल आइडिया एंड द डायरेक्शन. आपको कुछ डिफरेंट डायमेंशन मिल जाती है, कोई नई चीजें मिल जाती हैं, और उससे बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च भी हो सकती है, राइट. ऑब्जेक्टिव, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ऑलरेडी हो चुका है उसको हमको रिपीट नहीं करना है, thus preventing the recycling. Okay, these are the things that comes under why literature, right. These are the certain definitions. Just go through that. Study of literature on a specific topic to give to get an overview of the knowledge. Next, a gradual process when reader used to, देखिए वर्ड्स यूज किए गए, सर्च आउट, रीड, उसके बाद क्या आ रहा है, डाइजेस्ट एंड क्रिटिकली इवेल्युएट द प्रीवियस वर्ड. तो 4 स्टेजेस तो हमने बता दिए हैं.
कविता जी ने क्या बोला था, कितनी बार रीडिंग होनी चाहिए? 5। तो नियर अबाउट सेम चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? आप रीड करेंगे, सबसे पहले सर्च करेंगे, रीड करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? यू फाइंड आउट सर्टेन मीनिंगफुल previous work of the scholar related to the problem under investigation. This is a critical analysis and integration of the information from the number of sources as well as consideration of the gap in the research and possibility of the. So these are certain broad definition, workable definition of the LM. Okay, right. It can be. This is important. दिस लिटरेचर रिव्यू कितने तरीके का हो सकता है? एक तो स्ट्रक्चर वाइज है, वन इज इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव का मतलब क्या है कि आप अलग अलग स्टडीज से मिला करके क्या करें, जो उनके कंक्लूजन आए उनको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करते हैं, राइट। आजकल बहुत सारा वर्क किस पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू पे किया जा रहा है, राइट राइट। इस टाइप के बहुत सारा जो वर्क किया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज एक्चुअली इंटीग्रेटिव। इज इट ओके? नेक्स्ट होता है थ्योरेटिकल, प्रेजेंट डिफरेंट थ्योरीज टू एक्सप्लेन सर्टेन फिनोमेना, कंपेयरिंग ब्रेड्थ, कंसिस्टेंसी एंड द प्रेडिक्शन। हम लोग थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन उसमें करते हैं। नेक्स्ट इज मेथोडोलॉजिकल। मेथोडोलॉजिकल का मतलब, जैसे किसी ने कहा था कि हम मिक्स्ड मेथड रिसर्च करेंगे, तो ऑब्वियसली उस टॉपिक पे क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, क्वांटिटेटिव भी होगी, और उसके साथ में क्या करा गया होगा, मिक्स्ड मेथोडोलॉजी भी किया गया होगा। और अब जैसे कई बार, जैसे हम लोग जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की बात करते हैं, तो कई जर्नल ऐसे हैं जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि डोंट यूज एमओस, यूज स्मार्ट पीएलएस। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कहने का, कि बाय चेंजिंग द मेथड्स देयर मे बी सम डिफरेंट कंस्ट्रक्ट परसेप्शन ऑफ देयर इज समथिंग डिफरेंट, राइट। तो दैट कम्स अंडर मेथोडोलॉजिकल। नेक्स्ट क्या होता है? टेम्पोरल, मींस विद टाइम किस तरह से चीजें डेवलप हो रही, राइट। लास्ट वन इज ऑथर सेंट्रिक। कोई फिनोमिनल ऑथर है तो उसको आप लगातार क्या कर सकते हैं, लगातार फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग एआई की बात करें, एंड्रयू एनजी इज ए बिग नेम, राइट। तो किस तरह से एंड्रयू एनजी की रिसर्चेस में चेंज आ रहा है, तो दैट इज ए गाइडिंग पॉइंट फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू डू सम रिसर्च इन एआई और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, राइट। तो दैट इज बेस्ड अपॉन ऑथर सेंट्रिक। Is it okay? Right. Next है, अब when we want to go for the research, there are certain questions that needs to be answered. Number one, why? हम क्यों करना चाहते हैं? It can be from this structure part. The next one is where, कहाँ करेंगे? How to search, कैसे सर्च करेंगे, इसको हम डिटेल में भी करेंगे। How to select, how to read, how to make notes, how to structure, and how much. Again, these questions are highly subjective in nature. It is just giving you the broad description of the literature, right? According, as per the purpose, we can change the answers of these questions. So the first question is why. What is the new state, right? क्या चीज नई आई है? What are the trends? जैसे हम लोग बोलते हैं कि आजकल इस तरह के पब्लिकेशन का ट्रेंड है। अगर हम लोग मैनेजमेंट रिसर्च की बात करें तो इसमें नॉर्मली आजकल कहा जा रहा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज वेरी मच इन डिमांड, राइट। तो अगर किसी पर्सन को मैनेजमेंट रिसर्च में अच्छे पेपर पब्लिश करने हैं तो दैट पर्सन शुड गो फॉर द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक। हम लोग डेटा साइंस की बात करें, एनालिटिक्स की बात करें, तो उसमें नॉर्मली अब कहा जा रहा है कि नाउ द मेथोडोलॉजिकल रिसर्च या एल्गोरिथम रिसर्च और द डीप लर्निंग रिसर्च, राइट, इज टेकिंग एन हायर प्लेस, राइट। या इस टाइप के जो रिसर्चेस है जो चैट जीपीटी वगैरह पे है, जिसमें हम लोग एनएलपी यूज करते हैं, डेट इज यूज। तो ये हमको बताता है कि व्हाट इज द ट्रेंड। ट्रेंड फॉलो करने का बेनिफिट क्या होता है कि हमारी रिसर्च इजिली पब्लिशेबल हो जाती है और आपको उसका पार्ट बना जाता है, राइट। आप ट्रेंड के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द, हमको मालूम चलता है कि व्हाट इज द नॉलेज गैप।
Next is to know how your work will fit in those already existing. कि हमारा वर्क किसके क्लोज है, right? So we should follow that. Then let lecture purpose demonstrate the knowledge. ये तो जनरल टीचिंग पर्पस पे होता है. For writing research papers, review papers and thesis. It justify paper objective, methods justification, discuss and place finding in a wider context. Suppose किसी ने आपको चैलेंज किया कि आपका सैंपल साइज, मान लीजिए आपने सोचा कि यू आर गोइंग विद अ सैंपल साइज ऑफ 250, किसी ने चैलेंज किया योर सैंपल साइज इज टू स्मॉल, राइट? आप उसको कैसे डिफेंड कर सकते हो? यू कैन कोट नंबर ऑफ रिसर्चर्स, और आप कह सकते हैं कि दीज आर द बिग रिसर्चर्स, और उन्होंने इससे छोटे सैंपल साइज पे इस स्टडी को सक्सेसफुली करा. इज इट ओके, राइट? So it is used for method justification, or obviously for the objective justification it is always required कि जो भी objective हम ले रहे हैं, research objective या research hypothesis, it should be from the literature. Fine. The next is where to find. आप लोग को भी मालूम है there are a number of resources. अब तो बहुत ज्यादा हो गए. इसमें अभी हमने चैट जीपीटी नहीं इंक्लूड किया, इसको I should include चैट जीपीटी also. तो ये अभी हम इसमें कर ही लेते हैं. तो जितने भी इस टाइप के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स है, दे आर ऑल ऑन दिस, राइट? बहुत सारे चैट जीपीटी इज नॉट द ओनली वन, राइट? नेक्स्ट इज सर्च इन द रेफरेंसेस. जो हमने आपको स्नोबॉलिंग का एग्जांपल दिया था, दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ प्रॉपर सर्चिंग फॉर द लिटरेचर. ठीक, शोध गंगा आप लोग सभी लोग यूज ही करते होंगे, जो भी, क्योंकि आपको थीसिस उसमें अपलोड करनी है. हाउ टू सर्च, एक तरीका होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, गूगल, जैसे गूगल में आप कर, इवन चैट जीपीटी में भी आप सर्च करें तो व्हाट वर्ड्स यू आर यूजिंग, आपको जो आंसर्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंगली मिलेंगे. तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, वन इज द कीवर्ड. कई बार आपको कीवर्ड से आंसर्स नहीं मिल पाते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं? सिनोनिमस. तो अगर आपको प्रॉपर सर्चिंग नहीं हो रही है, यूज सिनोनिमस, यू विल बी गेटिंग बेटर. एडवांस सर्चेस होते हैं जो आप उसके अंदर चले जाते हैं. नेक्स्ट इज द बुलियन सर्च. बुलियन सर्च का मतलब जिसमें दो ही आंसर्स होंगे, यस और नो. ओके, इसी तरह स्नोबॉल फ्रॉम द रेफरेंसेस, दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. नेक्स्ट, हाउ टू सेलेक्ट द लेटेस्ट और मोस्ट रिसेंट वेल नोन ऑथर्स. नेक्स्ट क्या होता है, मोस्ट साइटेड, एंड ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ जर्नल इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो वी यूज दिस फॉर अ बेटर लिटरेचर. Many a time we write the research paper, और उसमें हम लोगों ने जो भी वो दिए हैं वो 2015 से पहले दिए हैं. सो वो उसी टाइम डेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा. रीजन क्या होगा कि आपने नई स्टडीज को, राइट? क्योंकि 9 years में देयर मस्ट बी अ नंबर ऑफ स्टडीज दैट शुड बी इंक्लूडेड, राइट? बड़े ऑथर्स का तो रोल ही होता है कि आप अपने फील्ड के बड़े ऑथर का नाम मेंशन करेंगे, तो वो चीज हमेशा ही ज्यादा डिजर्व मोर रिस्पेक्ट. नेक्स्ट इज हाउ टू रीड. सो जैसा फर्स्ट स्टेज थी स्किम. स्किम का मतलब क्या होता है, जस्ट गो थ्रू दैट, सरसरी नजर जिसको कहते हैं, राइट? गो थ्रू दैट. पहले स्टेज पे आप क्या करते हैं, गो थ्रू दैट, स्क्रीन करते हैं, तो उसके बाद आगे मूव करते हैं. तो फॉर स्किमिंग क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्टिव, रिजल्ट एंड डिस्कशन एंड द रेफरेंस that give you the broad overview of the literature. Fine. Next is how to make notes. तो जो एक्सेल की बात की गई थी, राइट? सो ये अभी हम आपको बाद में शेयर करेंगे, राइट? देयर आर अ नंबर ऑफ टूल्स, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जो आपको क्या यूज कर सकता है टू मेक अ प्रॉपर एक्सेल शीट, सो दैट वी कैन हैव, we can collate our literature. Is it okay? Right. So this is how to make notes. वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट है, इसको तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं. यस, हाउ लॉन्ग टू स्पेंड. ऑब्वियसली देयर इज नो डेफिनेट आंसर, डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज योर प्रायर नॉलेज एंड व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल लेवल दैट वी possess and what is the rigor needed. If you are trying for higher quality journals, Q1 के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिगर क्या होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा.
Q3 Q4 के लिए कर रहे हैं तो रिगर क्या हो, लेस इंपॉर्टेंट होगा, राइट। सो एज पर द रिगर, जितना हायर उस पर जनरल पे जाएंगे, द हायर लेवल ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है, इसको आप देखें, तो ये इसकी स्टेजेस के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे 5 स्टेजेस ही आ गए जो ब्रॉड हम लोगों ने ली थी, राइट। दिस इज द रिसर्च फनल और दिस इज एक्चुअली द लिटरेचर रिव्यू फनल। सबसे पहले आप क्या करते हैं, यू सर्फिंग करते हैं, ब्राउज करते हैं, राइट। सो इसमें क्या होता है, जस्ट टू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। हमको बहुत आइडिया ही नहीं होता, मींस एक तरह से वी डिफाइन द प्रॉब्लम related to literature review only, right? So we go with the surfing part, that is the first stage. Second क्या होता है, we use search engine, social network, publisher and blog. So to search means हम लोग locate करने की स्टेज पे आ जाते हैं, right? इसमें आपने क्या कि you have developed your keywords, means now you go for the targeted research using a search engine. गूगल स्कॉलर पे भी जाएंगे तो उस तरह से कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज करके उसको भी सेलेक्ट, दिस इज नोन एज लोकेशन, जब हम लोग लोकेशन करते हैं। नेक्स्ट इज क्यूरेट। क्यूरेट मींस देयर आर टूल्स अवेलेबल टू कैप्चर द रिलेवेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज, राइट। सो टू क्यूरेट और कलेक्ट देम फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट टू लुक एट देम मोर डीपली। आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है कि मींस जैसे आपको कोई चीज, आपको फ्रूट्स खाने हैं तो आप क्या करते हैं, पहले बहुत सारे फ्रूट्स इकट्ठा कर लेते हैं, राइट। दैट इज, उसमें से फिर हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा फ्रूट उस सिचुएशन के लिए बेटर हो जाएगा, दैट इज नोन एज सेलेक्ट। नेक्स्ट इज नोट्स टेकिंग। तो हम लोग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर यूज करते हैं, कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ नोट टेकिंग टूल्स आर आल्सो देयर दैट यू organize your notes using your keyword heading. Once you select the best resources you could find, this is known as organizing. Okay, so number of tools are there also. Finally हम लोग क्या करते हैं, उसमें से जो चीज इनहेरेंट है उसको बाहर निकालते हैं, that is known as synthesize, that is an improvement. Okay, और फिर से हमको अगर लगता है कि things are not properly there, then again we go to this funnel shape, right? So these are the 5 broad stages जो हम एक लिटरेचर रिव्यू में ब्रॉडली यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कैटलॉगिंग एंड सिंथेसाइजिंग। आपको भी मालूम होगा, मेडले है, एड नोट है, देयर आर नंबर ऑफ ऑनलाइन और भी आ गए हैं जो इस तरह के रेफरेंसेस को करने के लिए यूज, राइट। ये अभी हम आपको दिखाएंगे कैटलॉग ऑफ लिटरेचर रिव्यू, जो अभी हमने आपको स्लाइड दिखाई थी एक्सेल। तो उसमें दिस इज ए रिव्यू मैनेजमेंट का टेम्पलेट बनाया है कि उसको आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यू कैन डेवलप द टेम्पलेट। ओके, सो इसके थ्रू आपको क्या क्या आंसर्स चाहिए डाइजेस्ट और सिंथेसाइज करने के लिए, आस्क वेदर लिटरेचर इज आंसरिंग ऑल द रिसर्च क्वेश्चंस। नहीं हो रहा है तो वी हैव टू गो अगेन। नेक्स्ट इज, आपको सबको एक फ्लो में डेवलप करना होता है, सो हाउ ऑल ऑफ दिस फिट टुगेदर। There may be agreement, there may be disagreement. Both should be presented in a literature review. These authors are agreeing on this concept and these are going in the different direction. What should be my narrative? Finally, that literature review दूसरे का नहीं होता, literature review किसका होता है, हमारा अपना होता है। So हमको एक proper उसको sequence में होता है, means हम अपना एक narrative present करते हैं कि this is our understanding, जिसके थ्रू हमने उस स्टेज तक आए। It get the large picture, bird eye view, or try visual aids and mind mapping. ये भी tools available है that can be used for the research. Okay, so इसमें there are number of situations are there, like कुछ qualitative operation research tools भी हैं जिसमें हम लोग mind mapping करते हैं, client mapping करते हैं, researcher mapping करते हैं। एक सिंपल से एग्जाम्पल लोग इस तरह से भी यूज करते हैं कि सपोज बड़ी सी स्क्रीन लगा ली अपने उसमें और चीजों को कर करके लिख करके एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कि वेदर द डॉट्स आर बी कनेक्टेड ऑन, राइट। तो नंबर ऑफ ऑनलाइन टूल्स आर आल्सो अवेलेबल दैट यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। लास्ट इज द आउटलाइनिंग, ड्रॉ योर आउटलाइन एल्स यू विल ओवरराइट। और पूरा टेक्सचुअल ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्रिहेंशन होता है अगर आउटलाइन नहीं होती है, और आउटलाइन
एक्चुअली कम्युनिकेट वेल, इस तरह से हम चीजों को अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। इस आउटलाइनिंग में वी फॉलो टू प्रोसेसेस, one is as per the date, that is the chronological, and the second one is as per the theme, right? So we can go to both the way. So जैसा कि हम आपको एक मिनट दिखा देते हैं, जैसे इसमें देखिए दो अप्रोचेस लिए गए। द फर्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट सेंट्रिक। पहला अप्रोच क्या है, कोई एक कॉन्सेप्ट लिया, एक्स लिया, राइट। मान लीजिए हमने, सपोज हम इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इज द थिंग, तो हमने कॉन्सेप्ट लिया बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, उसमें जो जो ऑथर्स हैं उसमें हम उस एक्सेल में नोट करते चलेगा, राइट। इसी तरह जो दूसरा हुआ, जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बजाय रैशनल इकोनॉमिक्स पे जा रहा है, तो सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया रैशनल इकोनॉमिक्स, उनके ऑथर्स को लेकर, राइट। द सेकंड अप्रोच उतनी यूज नहीं होती है, वो क्या होती है कि ऑथर ए, how author A is changing from concept X to concept Y, and how author B is changing from concept X to concept W. इसका मतलब है कि how the author is being evolving the concept. So these are the two approaches that can be used to make the final. इसी तरह से एक और related concept है concept matrix, इसमें बनाई गई है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, ये आपने नंबर 1 आर्टिकल कुछ मेंशन किया, एंड दीज आर द सर्टेन कॉन्सेप्ट जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस में या आपके थीसिस में कवर होने चाहिए। नाउ यू कैन फिगर आउट कि इस आर्टिकल में कौन से कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो रहे हैं, राइट। सो यू कैन हैव अ गुड टेबल, गुड प्रेजेंटेशन, जिसके थ्रू आप यू कैन आइडेंटिफाई, दूसरा भी आइडेंटिफाई इसलिए कर लेगा कि किस आर्टिकल में कौन से कॉन्सेप्ट रिपीट हुए, कौन से कॉन्सेप्ट अंदर, राइट। सो it can be developed on Excel also. Excel में चेंजेस करना इजी रहता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स के साथ ही हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, यूनिट ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल्स लिया, राइट, ये आर्टिकल है, दिस इज यूनिट ऑफ एनालिसिस। यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल है, ग्रुप पे है, इंस्टीट्यूशन पे है, और दीज आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे जैसे यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशनल है, ग्रुप पे किया गया है या इंडिविजुअल किया, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस रिसर्च पेपर में कवर। इज इट ओके? सो इससे क्या होगा, चीजें एक कोडिफाई हो जाएंगी, चीजें इजिली प्रेजेंटेबल हो जाएंगी, एंड इट कैन बी यूज इजिली फॉर द फ्यूचर पर्पस। आप रिसर्च पेपर में भी लिखेंगे तो जो भी रिव्यूअर होगा उसके लिए इजी क्या पड़ेगा, वो इस टेबल पे अगर देख लेगा तो he or she has a full idea about the literature review that you have covered, right? कोई नई चीज नहीं लिखी है, एक्सेप्ट अ पैराग्राफ की जगह यहाँ पे चीजें कैसे प्रेजेंट कर दी गई, थ्रू अ टेबुलर फॉर्म, एंड टेबुलर फॉर्म इज ऑलवेज बेटर टू आईज, और हमको इंटरप्रिटेशन में भी इजी होता है, राइट। उसमें भी यूज, उसमें तो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं ना। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू नहीं करें, यू आर गोइंग ओनली विद द लिटरेचर रिव्यू, रिव्यू पेपर कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप इस पेपर को नहीं भी कर रहे हैं, और एनी रिसर्च पेपर वी रिक्वायर थॉरो लिटरेचर रिव्यू, तो सभी में जरूरत पड़ेगी हम, राइट। तो नाउ आई एम गोइंग बैक टू दैट, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, जो राइट अप हो गया, तो जैसा हम लोग बार बार बोलते हैं कि वी हैव टू रीड अ नंबर ऑफ टाइम, तो डोंट एम फॉर द परफेक्शन इन द फर्स्ट ड्राफ्ट। कभी भी फर्स्ट ड्राफ्ट सबसे अच्छा नहीं। सेकेंड ड्राफ्ट क्या हो जाएगा, इट कैन बी बेटर देन द प्रीवियस वन, जो लूज एंड्स हो गए उसको कवर करेगा, इम्प्रूव टेक्सचुअल ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज रिकमेंड कि जब भी लिटरेचर रिव्यू करें तो आप पेन पेपर के बजाय कैसे लिखना शुरू करें, सीधे वर्ड पे लिखना शुरू करें या एक्सेल पे लिखना शुरू करें, तो दैट इज इजियर टू बी एडिटेड। इज इट ओके? पेन पेपर पे लिखेंगे तो आपको फिर से करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है टेक ओपिनियन। जो अब माना यह जाता है कि अच्छी रिसर्च वो होती है कि जो नॉन डोमेन का पर्सन है उसको भी पढ़ने के बाद क्या होता है, समझ में आ जाए। अदरवाइज होता क्या है कि वेन एवर वी राइट द लिटरेचर रिव्यू, वो हमारा बेबी होता है, और अपना बेबी सबको क्या लगता है, राइट। सो वी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट हो पाएगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि अपने पीयर को पढ़वा दे, घर में किसी को भी पढ़वा दे, दैट पर्सन कैन जज कि जो प्रॉपर फ्लो आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। दीज आर
एक्शनेबल स्टेप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट डेफिनेटली इट कैन बी ट्राइड फॉर द इम्प्रूविंग ऑफ द लिटरेचर, राइट। टेक अ समरी फीडबैक फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। नेक्स्ट क्या हो गया, रीराइट। इसके बाद आप लोग किसका फीडबैक लेंगे, जो आपके गाइड हो सकते हैं, राइट, जो उस पर्सन में एकेडमिक मेंटर हो गया, जो जो उस थोड़ी नॉलेज को रख रहा है। तो दैट पर्सन कैन टेल कि कंसेप्चुअली चीजें मतलब कनेक्ट हो रही है या कनेक्ट नहीं हो रही। So this is the outlining and the write-up. Right? Some important thing is theoretical hierarchy होती। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ad hoc classification करते हैं, then we develop the taxonomy, then we go for the conceptual framework, lastly हम लोग क्या देते हैं, we go with the theoretical system. Okay, some more points, type of topics mature होने चाहिए analysis and synthesis के through, emerging होना चाहिए, what are the emerging, it provide fresh theoretical or conceptual framework, state the objective clearly, state the contribution, state the boundaries। कोई भी रिसर्च ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि एवरीथिंग में बी कवर्ड, क्लियरिफाई द इम्प्लीकेशन एंड क्लियरिफाई द assumptions also, राइट। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं, वी ऑलवेज से दैट इन एनी रिसर्च देयर शुड बी लिमिटेशंस। तो लोग कहते हैं कि हम लिमिटेशन लिख देंगे तो हमारा पेपर खराब लगने लग जाएगा, राइट। वो एक तरह की आपकी डिफेंस मैकेनिज्म भी होती है। वंस यू राइट द लिमिटेशन, तो बाउंड्री सेट हो जाती है कि आपने किस चीजों पे स्टडी करी है, राइट। So these are the certain points that any researcher, senior or junior, should be kept in mind, right? After that, the tone of review is important. Make it in the present tense, क्योंकि आप लिख रहे हैं, okay? Next is, do not just delve into past, propose for the future, right? It is your research, it is our research, so obviously it should be written from our perspective. पुरानी चीज को सीधे से कनेक्ट नहीं कर सकते। Why is the key, क्यों हम लिख रहे हैं? Give theoretical, empirical and experience based supportive reasons also, कि ऐसा हुआ है तो उसके theoretical reasons क्या है, right? किसी का एक्सपीरियंस हो सकता है और कोई डेटा सपोर्ट कर रहा है, तो दैट इज फॉर द एम्पिरिकल रिसर्च, राइट। इसके बाद आई एम शोइंग यू दिस, राइट। अब जैसे इसमें कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज है, जैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, वेबसाइट भी दे रखी है, राइट। इससे बेटर भी हो सकता है, हमने बहुत साल पहले बनाए थे, हमने इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया, हो सकता है हमारे रिसर्च स्कॉलर्स ने थोड़ा बहुत करा हो, राइट। Anyway, this is just for a demonstration कि what are the things that are available on the net, जिसको आप यूज कर सकते हैं for a better compilation your literature review. Author, year, title, किस कैटेगरी का, डॉक्यूमेंट टाइप, पब्लिकेशन सेटिंग, नॉलेज टाइप, की आर्गुमेंट, कॉन्टेक्स्ट, मेथोडोलॉजी, राइट। आप लिखते चलेंगे, that will automatically collate the things, automatically connect the things. Next, literature review। जैसे इसमें उसी के बेसिस पे निकाला गया है कि ये आपको, आप देख रहे हैं, ये जैसे ही वहां पे आप चीजें करेंगे उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा। एक्सेल फॉर्मूला यूज किया गया कि ओल्डेस्ट कब का है, न्यूएस्ट कितना है, किस ईयर का है, एवरेज ईयर क्या है, राइट, किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स है, ऑल आर हैविंग लिंक विद द प्रीवियस, ओके। पब्लिकेशन सेटिंग्स, एकेडमिक है, प्रैक्टिशनर है, किस टाइप का नॉलेज टाइप यूज किया गया, थ्योरेटिकल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की गई है, राइट। सो इट इज यूजफुल टू हैव अ समराइज थिंग ऑन दैट। इसको ट्राई करके देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट इज द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। एक एग्जांपल लिया गया, दिस इज द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। आपने जो डायग्राम दिया, ये डायग्राम कहाँ से दिया है, राइट। दिस डायग्राम इज फ्रॉम सम थ्योरी, और इसके बेसिस पे क्या हुआ गया, दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग डेवलप्ड कि किस तरह से हमको इसमें मूव करना चाहिए। इज इट ओके? सो वंस यू प्रोवाइड दिस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इट विल बी प्रोवाइडेड हियर। मेजरमेंट एंड द स्केल्स, जस्ट एग्जांपल के लिए है कि आपने किस तरह के इस डेटा को कलेक्ट किया, राइट। Obviously, this slide is more for the management purpose. अपने subject के accordingly, you must be getting the relevant slides. Okay.
नेक्स्ट इज इंटरव्यू एंड द सर्वे क्वेश्चन, कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। जैसे रिसर्च क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रिसर्च क्वेश्चन एंड हाउ द रिसर्चर लर्न फ्रॉम दिस इंटरव्यू। लाइक एक क्वेश्चन दिया गया, हाउ डू स्टूडेंट डेवलप द नेचर ऑफ आर्गुमेंटेशन इन द पब्लिक नेगोशिएशन। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिए गए, how do you describe to a fourth gender what is claim is? How you describe to the fourth grader what the evidence is? Fourth grader, sorry. How do you describe to a fourth grader what negotiations is? ये आपको खाली क्या सजेस्ट कर रहा है कि things should be made so simple कि fourth क्लास के भी बच्चे को चीजें क्या हो जा रही समझ में आ रही। तो once you think about that, you will be getting a better context of your research, a better literature. ये हम आपको शेयर कर देंगे दोनों स्लाइड। यू कैन गो डीपर इनटू दैट, यू कैन फाइंड आउट सम इम्प्रूवमेंट आल्सो। So this is all about.